Why are we making this webinar? Mainly to aware the people about the diabetes, because India is the diabetic capital of the world. After China, India is having the most prevalent cases of diabetes. China is having some diabetic cases, but they are under control. But India, the diabetic patients are not usually under control, and many younger generations are also getting more prevalent to diabetes also. So it is not a rich man disease now. Earlier, we used to tell that the diabetes is a rich man disease, but in every street, every age, and every group of the family is suffering from the diabetes in India. So India has the fastest growing diabetic patients, and there are some shocking statistics that you should be aware about. That India is having over 101 million diabetic patients, and 136 millions are pre-diabetic. That means they are pre-diabetic. They are having borderline sugar levels. That means if we see that the fasting blood sugar for diabetes should be around more than 126, or random should be more than 200 mg per deciliter. So these patients are having somewhere around less than 126, but it is around the borderline sugar. So they can be already pre-diabetic patients, like they are having hepatic insulin resistance or muscle insulin resistance. So we have to take care of these patients who are pre-diabetic, because pre-diabetic conditions can be prevented, but diabetes cannot be prevented. It's a controllable disease. So pre-diabetics can be prevented, but diabetes is only controllable by appropriate interventions and management. So every 6 person with diabetes in the world is an Indian. So if you don't know about 101 million diabetics, it's like 10 crore, 10 lakh people are suffering from diabetes in India. So shocking it is. So over 2 lakh deaths are reported annually, but these deaths are not written on the death certificates. Like in death certificates, not it's not mentioned that these patients are died because of diabetes. Diabetes is a root cause, but diabetes can lead to heart failure, even kidney failure also. Even diabetes can lead to stroke also. So mainly we see in Indian hospitals that many patients are dying because of stroke, heart attack, or even kidney failure. So diabetes is one of the main cause of these conditions. So many people don't know about this. So I'll tell you everything: how heart attack occurs, how kidney failure occurs, how stroke occurs in diabetes, every complication that are seen in diabetic patients. I'll tell you in detail about it. So every hour in India, at least 20 to 30 people are dying. That is like a entire bus of full of people that are dying due to diabetes every hour, at least 20 to 30 people. So can any one of you tell me what are the risk factors of diabetes in the chat box, or you guys can unmute also. If I have muted from my side, you can tell me. I'll unmute you all. So kind of let's keep it interactive. Can you tell me what are the risk factors of diabetes? Okay, so let me tell you what are the risk factors of diabetes. Every person who's having a sedentary lifestyle, that means he's not taking any exercise, he's not into regular exercise, he's just sitting, doing work job, desk job. Like in India, we all prefer the desk jobs now. We don't like to do any exercise also. So every sedentary worker, every man who's having a sedentary lifestyle is a risk factor of diabetes. Is the first point. Second point is anyone who's having a high carbohydrate diet. That means anyone who's taking a diet that is rich in only carbohydrates, neither a balanced diet, it's only rich in carbohydrates, either fat or protein, is a high risk for diabetes also. Any person who's obese, whose BMI is more than 30 kgs per meter square, is a risk factor of diabetes. So any person who's under stress, so stress is one of the risk factors of diabetes. Every patient who has not seen the doctor for at least we should at least do health checkups annually. So many patients kind of ignore. At least 50% of Indian population don't even know they are diabetic also. So can you tell me how carbohydrate diet can lead to diabetes? Why we say don't eat any sweet, don't eat anything that is sugary? How it can lead to diabetes? Why not every person is suffering from diabetes? Why only few people are that is that like diabetes is like your body doesn't like sugar at all. So why it happens in few individuals, not in everyone? Can anyone of you tell me how fat can lead to diabetes? How stress can lead to diabetes? So you guys should know these things, as it's like a basic thing that we should be aware about, so that why we can understand about the diabetes also, the main mechanism how diabetes is happening. See, anytime a person is taking carbohydrate diet, carbohydrate means sugar. The sugar goes into the body, it's absorbed by the intestine. Now the sugar is in the blood. Now the pancreas gets stimulated and pancreas release insulin. The main function of the insulin is to take the sugar into the cells. Cells are the main source where from the energy can come. Okay, because the cell synthesize this glucose comes into the cell, and cell synthesis goes into the mitochondria, and cell synthesize ATP. That is the main source of energy. What happens when this sugar is uncontrolled in our body, or every time, even if a person is doing regular job, like every time the person is doing 24-hour work, he will get eventually tired. Same thing happens with the pancreas. The pancreas initially synthesizes insulin, and this insulin tries to take this glucose into the cell, but one time comes, this insulin receptors also get tired. So these insulin receptors are like, we don't want the sugar to come into the cells, so let the sugar be into the blood. Okay, so this happens when there is an uncontrolled, every time you are eating carbohydrate diet, your stimulation for insulin secretion gets a lot. That's why there comes a time where there is a down sensitivity of the receptors. These receptors don't respond to the insulin for the glucose to go into the cell. So that's why the sugar remains into the body, and eventually it can lead to diabetes. And the second thing that is important is obese patient. Anyone who is obese, having the fat, and the fat is like an stoppage for anything. So when the insulin wants to take this glucose into the cell, these cells are coated with the fat. So this leads to the restricted entry of this glucose into the cell. So that's why this fat also, like it's like a barrier. This barrier doesn't let the glucose enter into the cell. So that's why the cells are starved of glucose. The third thing is that stress. In every stress condition, the cortisol, the stress hormone, is released in a fight and flight response. So this cortisol can lead to insulin resistance also. So that's why every patient who's under stress is prone to develop diabetes also. So these are some risk factors.
high carbohydrate diet, sedentary lifestyle, and the patient who are taking stress, these are the patients who are at the risk of diabetes. So I hope this clarifies you the risk factors of diabetes. So let's move forward. So these are the contributing factors in India: the carb-heavy diet like rice, roti, sugar, sweets; sedentary lifestyle, that is desk job, less walking; central obesity, belly fat; genetic susceptibility. Yes, Indians have more genetic predispositions to develop diabetes also. Urbanization and stress, I told you, and poor awareness and late diagnosis also the risk factor of diabetes. So if we don't act now, sugar will silently destroy the next generation. But awareness, movement, and smart eating can reverse this. Okay. So, like just last month, a 42-year-old female school teacher walked into my clinic and there were no major complaints. She was just tired. On routine examination, we just checked her blood sugar level and it was dangerously high. Silently, this is a story of many millions in India today, and most don't find out until they lose their eyesight, kidney, and worse. See, the only symptom the girl was having, that a school teacher was having, is of tiredness. See, tiredness. Tiredness means lethargy or fatigue ho sakta hai. So, lethargy or fatigue or tiredness can have many differential diagnoses. One of them being, so can anyone of you tell me what are the differential diagnoses of weakness? Can anyone of you tell me? Can unmute your audio also. Let's kind of make it interactive. You guys can tell, no problem, whether in Hindi or English. कोई भी पेशेंट आपके पास वीकनेस की कंप्लेंट लेकर आ रहा है, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कम्स इन योर माइंड? और इवन इफ यू आर जस्ट अ फैमिली मेंबर, आपके आपके घर में किसी को वीकनेस है, सो आपको क्या लगता है क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है वीकनेस जो बोल रहा है आपको कंप्लेंट है? Like most probably it's mostly diabetes or thyroid, we can say that. And Yeah. sometimes it's like the mental health issues as well, which leads to weaknesses. Sorry, what? Mental health issues and then thyroid sometimes. Yeah. Thyroid, In thyroid, what do you mean? Hyper or hypothyroid? hypothyroid. Yeah, good. So in weakness, what happens? Any person or any female or male who's complaining of weakness, 4 5 things you should keep in your mind. First is most common in India, that is iron deficiency anemia. Most common iron deficiency anemia, either vitamin B12 deficiency anemia. Third thing, another vitamin, you can say vitamin D, that comes from the sunlight. You know, every Indian is like, usually they are sitting at the home only, they are not exposed to the sunlight also, you know. So this can lead to vitamin D deficiency also. Hypothyroidism, one of the main great cause of the weakness, and diabetes also. The main complaint of the diabetic patient is just weakness, because listen, this sugar is in the body, is in the blood, not into the cells. The cells needs energy. The sugar is in the blood, so cells are starving of the energy. That's why the main complaint is of the patient is of that weakness. So this is the main complaint. Patient बोलेगा कि मुझे कमजोरी लग रही है. So diabetic patients अगर आपके घर में होंगे, these will be the main complaints like weakness. फिर further कुछ symptom signs आते हैं that I'll tell you as we move forward. Okay? So anyone of you can tell me the definition of diabetes, as I gave you some hint about what is diabetes. It's like a condition in which there is a persistent hyperglycemia. Hyperglycemia means raised blood sugar level in your blood. So it's like persistent, not abhi maine kuch khaya, my blood sugar will be raised. Obviously, it will be raised because it's getting absorbed to intestine, anything I'll eat. So it will remain in the blood till time. But diabetes means persistent hyperglycemia. It means persistent rise in the blood sugar level. So it's like kind of a long duration, the blood sugar level is elevated. So it can be due to absolute deficiency of insulin. So insulin is one of the hormone that takes the sugar from the blood into the cell. So if there is no insulin, this sugar will remain into the blood. So there is absolute deficiency of insulin. Second thing is there is a relative deficiency of insulin. Like there is some receptor downregulation, there is resistance to the insulin receptor. This insulin is synthesized by the pancreas, but it is not acting on the receptors. That's why where I told you in first that a fat, जो fat body में होता है, this fat will get accumulated entire around the cells. So these cells में वहाँ पे insulin receptors होते हैं. So insulin receptors के इर्द भी there will be fat. So this insulin can't act on the cells. So उनके receptors पे, so insulin ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं ले पाएगा. इसी फैट एक्यूमुलेशन की वजह से ये रेजिस्टेंट हो जाता है इंसुलिन का रिसेप्टर. और ओवर स्टिमुलेशन ऑफ बार बार आप शुगरी चीजें खाएंगे जिसमें बहुत कार्ब्स होंगे, एक टाइम पे आपका पेनक्रियाज भी थक जाता है. एक टाइम पे आपका पेनक्रियाज भी थक जाता है, बोलता है आई कांट सिंथेसाइज मोर इंसुलिन बिकॉज रेजिस्टेंस टू हार्मोन्स मेनली अभी तक हमने कहीं भी नहीं सुना होगा कि कोई और हार्मोन की रेजिस्टेंस भी हो सकती है. वन ऑफ दम इज इंसुलिन. इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो सकती है. अनदर हार्मोन इज लेप्टिन. ओबीस पेशेंट्स में जब फैट बॉडी में बहुत ज्यादा होता है, अनदर हार्मोन बहुत ज्यादा बॉडी में होता है, दैट इज लेप्टिन. सो लेप्टिन का काम होता है, इट सिग्नल्स द ब्रेन टू वी हैव इनफ फैट, सो वी डोंट नीड एनी एनर्जी सोर्सेस, सो स्टॉप हैविंग क्रेविंग्स ऑफ मोर फूड. बट इवेंचुअली क्या हो जाता है, जब बहुत लोग ओबीस होते हैं वो ज्यादा खाते हैं. आप कभी नहीं सुनेंगे ओबीस पेशेंट का एपेटाइट सप्रेस हो गया है, दे डोंट ईट एनीथिंग. ओबीस पेशेंट हालांकि और ज्यादा खाते हैं इसी की वजह से, क्योंकि उनका लेप्टिन जो है एक टाइम पे उसका काम है सिग्नल देना ब्रेन को कि वी डोंट वांट एनी मोर फूड नाउ, वी हैव इनफ फैट. बट ये लेप्टिन की भी रिसेप्टर्स की रेजिस्टेंस हो जाती है इसी फैट की वजह से. इसीलिए ये लेप्टिन जो होता है ब्रेन को सिग्नल भी नहीं दे पाता है. सो ब्रेन को लगता है अभी भी पेशेंट भूखा है, ओबीस पेशेंट है तो इसको भूख लग रही है, तो ओबीस पेशेंट इसीलिए ज्यादा खाते हैं. सो आपको ये क्लियर हो रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? Yes, it's quite understandable. Thank you. Okay, thank you. So this is a definition of diabetes. So डायबिटीज का असली जो मेडिकली टर्म होता है वो डायबिटीज मेलाइटस होता है, और एको डायबिटीज होती है, दैट इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस? डायबिटीज मेलाइटस में ये जो सारा शुगर बॉडी में होता है, इट इवेंचुअली पासेस थ्रू द यूरिन. बॉडी ट्राइज टू कंपनसेट. बॉडी के अंदर कोई भी चीज अगर खराब हो जाएगी, इवेंचुअली पहले स्टार्ट में बॉडी खुद ट्राई करती है टू कंपनसेट करना, चाहे हाइपरटेंशन हो, कोई भी चीज हो बॉडी में. इवन हार्ट फेलियर भी बॉडी खुद से कंपनसेट पहले ट्राई करती है. जब फेल हो जाती है तब फिर पेशेंट्स डॉक्टर के पास आ जाते हैं कि अब वो सीरियस कंडीशन में, तो डॉक्टर साहब अब हमें ठीक करिए. तो ऐसा हाल हो जाता है. सो फर्स्ट डायबिटीज में जब ये शुगर लेवल बहुत रेज
केस होती है, किडनी ट्राइज टू एक्सक्रीट दिस शुगर, क्योंकि शुगर जो है ये ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है। इसका मतलब है कि ग्लूकोज जो है वो हमेशा अपने साथ पानी को साथ ले जाएगा। सो हमारी बॉडी में जितना भी पानी है, इवेंचुअली ये सारा ग्लूकोज के साथ अटैच होकर यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम डायबिटीज पेशेंट देखते हैं, दे आर सीवियरली डिहाइड्रेटेड। इस यही रीजन है कि वो डिहाइड्रेटेड है, क्योंकि उनकी बॉडी में से सारा यूरिन जो है वो पास हो रहा है कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली, क्योंकि ग्लूकोज इतना ज्यादा है कि अपने साथ हमेशा पानी लेकर जा रहा है। सो ये पेशेंट डिहाइड्रेटेड भी होते हैं। सो इनकी मेन कंप्लेंट जो होती है वो पॉलीयूरिया होती है। पॉलीयूरिया भी होता है मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, लाइक मैंने आपको पहले वीकनेस बोला, उसके बाद पॉलीयूरिया, दैट मींस एक्सेसिव यूरिनेशन। इट्स लाइक डायबिटीज मेलाइटिस, इसको हम डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। अनदर कंडीशन इज डायबिटीज इंसिपिडस। इन डायबिटीज इंसिपिडस व्हाट हैपेंस, so wait, many other people are requesting me to allow them to join. I think they missed something that we initially started. So let it be. Let's continue. So I was telling you about diabetes mellitus and diabetes insipidus. The difference is diabetes mellitus में sugar urine के साथ pass हो रहा है. In diabetes insipidus, it's like a lack of antidiuretic hormone. It's like a diuresis. Diuresis means हम water excessive water pass करते हैं, तो antidiuretic hormone नहीं होता है body में. उसकी वजह से क्या हो जाता है diabetes insipidus के patients में, ये water reabsorb kidney में नहीं होता है. So diabetes insipidus की patient की complaint सिर्फ urination होती है, not sugar in the urine. ठीक है। सो डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटीज इंसिपिडस आर लाइक डिफरेंट टर्म्स, बट द नेम डायबिटीज इज इसीलिए क्योंकि डायबिटीज का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन। कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज? यू कैन अनम्यूट एंड tell me what are the types of diabetes. Gestational diabetic also? Yeah, gestational diabetes is one of diabetes, but I'm telling some important diabetes. Gestational is Insulin dependent? yeah, that is type 1. Non-insulin. Non-insulin dependent? Yeah. And gestational also? Yeah, so there are quite few more diabetes, like that is there are MODY, maturity onset of diabetes in young. There is LADA also, that is latent autoimmune diabetes in adults. And there is also another 6 type, that is bronze diabetes. That is seen in hemochromatosis patient that are like iron excess जिनकी बॉडी में होता है, they are their pancreas get damaged, so उनमें भी इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है, so उसको हम ब्रॉन्ज डायबिटीज बोलते हैं, जो हेमोक्रोमेटोसिस पेशेंट्स में होता है। सो फर्स्ट इज द बेसिक टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज का मतलब होता है देयर इज एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन। एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन का मतलब है कि आपके पेनक्रियाज में से इंसुलिन इज नॉट गेटिंग सिंथेसाइज्ड। व्हाई इट्स नॉट गेटिंग सिंथेसाइज्ड? देयर आर सम कॉजेस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। सो हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज इज एन ऑटोइम्यून कंडीशन। ऑटोइम्यून कंडीशन का मतलब है कोई ऑटोइम्यून डैमेज की वजह से आपका पेनक्रियाज की बीटा सेल जहां से इंसुलिन निकलता था वो डैमेज हो गया। क्या कॉज हो सकते हैं ऐसे? अगर किसी बच्चे को बचपन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि कॉक्सैकी वायरस और एंटेरोवायरस, हम बोल सकते हैं रुबेला वायरस ऑल्सो, इनके जो एंटीजेंस होते हैं, दीज वायरस, इनके कुछ एंटीजेंस होते हैं, वो रिजेंबल करते हैं हमारे पेनक्रियाज की बीटा सेल के साथ, जहां से इंसुलिन सिंथेसाइज होता है। सो हमारी बॉडी को तब बचपन में पता नहीं होता, इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता है, सो हमारी बॉडी गेट्स कंफ्यूज कि असली एंटीजन कौन है और रिजेंबलेंस किसके साथ है। वो मॉलिक्यूलर मिमिक्री उस मैकेनिज्म को बोलते हैं। सो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि ये असली एंटीजन को मारे या इस एंटीजन को मारे, तो वो दोनों को मारने लग जाती है। वो असली एंटीजन जो वायरस का था उसको भी मारती है, और पेनक्रियाज के बीटा सेल में भी जो एंटीजन होता है, जो मोस्टली ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंटीजन होता है, जो हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में जो हम टेस्ट करते हैं, हम देखते हैं कि उसमें ये एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी थी, तो तब हमें पता चलता है हाँ ये ऑटोइम्यून कंडीशन है, टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है। सो ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, तो वो भी डैमेज करती है पेनक्रियाज को। सो पेनक्रियाज डैमेज हो गया, देयर विल बी नो सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन नाउ। सो टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट्स में एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होती है। सेकंड कॉज टाइप 1 डायबिटीज का हो सकता है कि अगर इनिशियली फॉर एग्जांपल समन जो बच्चे सिजर से जिनकी डिलीवरी होती है, नॉट नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, सिजेरियन से अगर डिलीवरी होती है, सो उन बच्चों का लेस एक्सपोजर होता है माँ की जो वजाइनल कैनाल होते हैं, वहां पे कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे को डाइजेस्ट करने के लिए, ताकि उनका इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाए। अगर इन बच्चों की डिलीवरी सिजर से हो जाती है तो इनको कोई एक्सपोजर नहीं मिलता है वजाइनल कैनाल का। सो सिजेरियन सेक्शन के टाइम ऑलरेडी द सर्जन के ग्लव्स वगैरह वो सब, उन सब में कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। सो इन बच्चों में इनिशियली बैड बैक्टीरिया का एक्सपोजर हो जाता है, नॉट गुड बैक्टीरिया। सो इनमें भी इम्यून सिस्टम में डिसफंक्शन हो जाता है। सो दीज किड्स आर आल्सो प्रोन टू डेवलप ऑटोइम्यून टाइप 1 डायबिटीज इन फ्यूचर आल्सो। अनदर थिंग इज इन चिल्ड्रंस, अगर आप जल्दी काउ मिल्क इनिशिएट करेंगे, वी नो ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू टिल 6 मंथ्स, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। सो कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी मदर्स होती है, दे जल्दी जल्दी काउ मिल्क पे स्टार्ट करती है बच्चों को। सो डॉक्टर खालिद हैदर इज माय अंकल, ही इज एमडी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, ही हैज आल्सो जॉइंड। And Dr. Adil, one of my classmate, one of my junior, he's also joined. Thank you. And Dr. Fatima has also joined. Thank you for joining. And Saeed Tamsil Fatma also have joined. And another we have Javeria Mohammed Junaid. Thank you for joining. So I hope I will make you quite concepts clear regarding diabetes in this session. So I was telling you about cow milk. Cow milk is also having a protein, that is beta casein protein. Beta casein protein is also having a resemblance to the pancreatic beta cell. So कोई भी बच्चा जिसको जल्दी इनिशिएट आपने काउ मिल्क किया होगा, नॉट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, उनमें भी उसका जो इम्यून सिस्टम होता है गेट्स कंफ्यूज कि मैं जो बीटा केसिन है उसको अटैक करूं, पेनक्रियाटिक बीटा सेल को अटैक करूं। सो इनकी मॉलिक्यूलर मिमिक्री, दे हैव अ रिजेम्बलेंस, सो दोनों को अटैक हो जाती है। सो इन बच्चों में भी टाइप 1 डायबिटीज डेवलप हो जाता है। सो अब टाइप 2 जो मोस्ट कॉमन इंडिया में है, जो एवरी हाउस होल्ड आई थिंक इन इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का मेन मैकेनिज्म है इंसुलिन रेजिस्टेंस, दैट आई टोल्ड यू इनिशियली। क्वाइट फ्यू पीपल जॉइन लेटर, सो दे मस्ट नॉट नो अबाउट हाउ दिस इंसुलिन रेजिस्टेंस हैपन। सो सी व्हाट हैपेंस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस डजंट हैपन इन एवरीवन, इट हैपेंस क्वाइट अ फ्यू पीपल हु आर ओबीस, जिनकी बॉडी में ज्यादा फैट है, और क्वाइट वो पीपल जिनका लाइफस्टाइल दे आर लाइक सेडेंटरी, दे
don't move or they don't exercise at all, or anyone who is having high stress, इनका mechanism ये है कि anyone who is having high stress is having high cortisol. Cortisol is responsible for insulin resistance because it is a stress hormone. It is released in fight and flight response. It is responsible for insulin resistance. Second thing is जिनकी body में ज़्यादा fat है, this fat is like a coating around these cells. इन cells में हमें glucose डालना है, but इनके इर्द गिर्द fat है, so आपको लगता है glucose जाएगा insulin की मदद से अंदर. It can't go because इनके अंदर अराउंड कोटिंग होती है, और फैट जिनमें होता है, दे हैव ऑलवेज अ काइंड ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी. उनमें इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं. जब भी आप किसी फैट पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराएंगे, आप देखेंगे उनका कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का मार्कर उनका इंक्रीज होगा, क्योंकि फैट जो है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस प्रीडिस्पोज करता है. Third thing is quite a sedentary lifestyle. For example, if a person like me, I'm sitting, I'm not doing any work, कोई exercise नहीं I'm doing. Do you think my muscle needs glucose for energy? Do you think my muscle will need glucose for energy? मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ. I'm not utilizing any of my muscles. So my muscle doesn't need glucose now. So what will my muscle tell my body? It will tell, you don't need glucose, let the glucose be in the blood. अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, ये ग्लूकोज जो ब्लड में है, इट कैन कम इनटू द सेल्स, बट वी आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज, तो हमारी मसल्स अब अडेप्ट हो जाती है. दे डोंट नीड एनर्जी, दे डोंट नीड ग्लूकोज, दे आर काइंड ऑफ ओके बिकॉज हम यूज ही नहीं कर रहे हैं उनको. सो ग्लूकोज, ये सारा जो शुगर है, इट विल रिमेन इन द ब्लड, एंड इट विल रिमेन इन द ब्लड. और आपको पता है जो ग्लूकोज है ब्लड में रहेगा, ये ब्लड को मोटा करेगा. इट विल मेक द ब्लड थिक, इट विल मेक द ब्लड हाइपर कोगुलेबल. ये ग्लूकोज जो है, ये वाटर को साथ साथ अपने, क्योंकि ऑस्मोटिकली एक्टिव है, इट विल टेक वाटर विद इटसेल्फ. सो इट विल मेक द पर्सन इवेंचुअली, बहुत ज्यादा उनको यूरिनेशन हो जाएगी, क्योंकि वाटर को भी अपने साथ साथ लेता है. सो किडनी विल ट्राई टू एक्सक्रीट दिस शुगर ऑल्सो वाटर, सो उनको एक्सेसिव यूरिनेशन होगी. तो मेन कंप्लेंट पॉलीयूरिया है. एटलीस्ट वीकनेस भी होगी, क्योंकि उनकी बॉडी में ग्लूकोज एंटर ही नहीं हो रहा है, फैट कोटिंग है. Their muscles are not needing any type of glucose now because their muscles are adapted to rest also. So they don't need glucose. उनको weakness भी होगी, क्योंकि इनकी सेल्स के अंदर ग्लूकोज जा ही नहीं रहा है. इवेंचुअली इन पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हो जाती है, जो हम इग्नोर करते हैं कि हमें लगता है बस शुगर की बीमारी है, लेट इट बी काइंड ऑफ नॉर्मल. बट आप खुद इमेजिन करिए, ये ग्लूकोज आपके ब्लड में है, और ये ब्लड मोटा होते जा रहा है. It is getting thicker and thicker and thicker. Don't you think the main organ that is responsible for circulation, heart won't get affected? So any patient who's having a heart attack is mainly of diabetes. So death certificate we won't mention this patient died because of diabetes. Death certificate पे होगा mention कि इसको heart attack हुआ, पर cause can be diabetes. So eventually हम heart attack bigger term है, उस पे focus करते हैं. We don't focus on diabetes. So ऐसी stroke, आपका brain का circulation रुक जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज भरा पड़ा है, इसमें circulation रुक जाएगी, उतना properly नहीं होगा. और ये ग्लूकोज जो है, इसकी वजह से धीरे धीरे, और ये फैट जो आपकी बॉडी में है, इसकी वजह से जो ब्लड हो जाएगा, उसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग भी डेवलप हो सकता है. उसकी वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है. रेनल फेलियर हो सकता है. रेनल फेलियर कैसे हो जाएगा? ये ग्लूकोज जब फिल्टर हो रहा होता है किडनी से, सो किडनी के कुछ फिल्टर्स होते हैं. इवेंचुअली ये ग्लूकोज पार्टिकल्स थोड़े थोड़े छोटे होते हैं, बट धीरे धीरे ये बड़े हो जाते हैं, तो ये फिल्टर को भी डैमेज करते हैं. अब वो फिल्टर जो सिर्फ पानी को फिल्टर करता था, या छोटे छोटे सब्सटेंस को, अब वो बड़े बड़े सब्सटेंस को भी फिल्टर कर रहा है, ग्लूकोज को. बॉडी में प्रोटीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ब्लड वेसल में प्रोटीन होता है हमारे, लाइक एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सारे प्रोटीन जो होते हैं, दे आर कोलाइडल, मतलब ये कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं. ये ब्लड में हमारे ब्लड को जो है, उसमें वाटर जो है उसको खींच कर रखते हैं, ताकि ब्लड वेसल से बाहर ना जाए. अब ये सारा प्रोटीन भी लीक हो रहा है, क्योंकि जो आपकी किडनी है उसका फिल्टर डैमेज हो गया है. सो आपको नहीं लगता कि ये सारा पानी भी लीक होने लग जाएगा? ये सारा पानी ब्लड वेसल से लीक होकर आपके टिश्यूज में बाहर बॉडी में आने लग जाएगा, तो इसको हम एडिमा बोलते हैं. वो डिपेंडेंट एडिमा भी मिलेगा, जहां पे आप खड़े रहेंगे, जैसे आपके एंकल्स पे, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से सारा ब्लड उधर ही जम जाएगा, और प्रोटीन भी लीक हो रहा है. सो इस प्रोटीन की लीक होने की वजह से सारा फ्लूइड जो हमारी बॉडी में, ये ब्लड में होता है, इट्स ऑल्सो कमिंग आउटसाइड. सो एडिमा प्लेस पे हो सकता है, एंकल एडिमा हो सकता है, पेट में हो सकता है. इट कैन हैपन एनीवेयर, दैट इज डिपेंडेंट, जहां पे जिस टाइप ऑफ पोजीशन पे पेशेंट विल बी स्टैंडिंग और सिटिंग और इवन स्लीपिंग आल्सो. सो और भी मैंने डायबिटीज आपको बोले. गेस्टेशनल डायबिटीज इज वन ऑफ देम. गेस्टेशनल डायबिटीज इज लाइक डायबिटीज का फर्स्ट ऑनसेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होगा. दिस पेशेंट इज नॉट हैविंग डायबिटीज बिफोर, उसको हम प्री एक्जिस्टिंग डायबिटीज बोलते हैं, या ओवर डायबिटीज बोलते हैं. पर गेस्टेशनल डायबिटीज में क्या होता है, फर्स्ट ऑनसेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम कुछ हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल की बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं. वन ऑफ देम इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है. तो बट डिलीवरी के बाद ये यूजुअली आपका कम हो जाता है प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर लेवल. और इससे क्या हो जाएगा, अगर आप कोई देखेंगे डायबिटिक मदर है, जो उसका बच्चा होगा ना, वो यूजुअली मैक्रोसोमिक होता है, तो उसमें हमेशा सिजर ही करना पड़ता है, क्योंकि वो वजन कैनाल से जाता नहीं है, वो बड़ा होता है, उनका बर्थ वेट मोर देन 4 kg होता है. सो उनके लिए हम सिजर करते हैं. तो आपको नहीं लगता कि जो डायबिटिक मदर है, उसका बच्चा जब पैदा हो जाएगा, उसको हमने सिजर कर दिया, तो वो टाइप 1 डायबिटीज के लिए प्रोन होगा? क्योंकि मैंने आपको बोला कि टाइप 1 डायबिटीज कब हो जाती है, जब बच्चा सिजर से डिलीवरी होती है उसकी, क्योंकि वजनल कैनाल से होती है, तो ही और शी कैन टेक सम ऑफ द गुड माइक्रोबायोटा दैट आर प्रेजेंट इन द वजनल कैनाल, बट वो नहीं कर पाता है वो, क्योंकि ही और शी हैज बीन डिलीवर्ड थ्रू सिजर. सो क्या आप लोगों को ये समझ आ रहा है यहाँ तक? Yes, yes. ओके. Yes. ओके, थैंक यू. सो अनदर 3 टाइप्स ऑफ डायबिटीज आर देयर इंडिया में कॉमन है, दैट इज टाइप 2, जिसमें मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म आपको बताया. मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज इन यंग का मतलब है कि जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हम देखते थे एल्डरली पेशेंट्स में, इट्स एटलीस्ट सीन आफ्टर 40 इयर्स. टाइप 2 डायबिटीज आप कभी बहुत रेयरली देखेंगे कि इट हैज बीन डायग्नोस्ड 25 इयर्स में या 30 इयर्स में. 40 इयर्स के बाद हो जाता है टाइप 2. टाइप 1 कैन अकर जल्दी, क्योंकि टाइप 1 जो होता है वो एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी से हो जाता है, वो बच्चों में कॉमन है, वो लेस देन 25. सो मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज इन यंग का मतलब होता है यही टाइप 2 डायबिटीज जो हम पढ़ रहे हैं, जो अडल्ट्स में होता था मोर देन 40 इयर्स, वो हो रहा है किन में?
छोटे बच्चों में, दे आर यंग लेस देन 25 years of age. इसके भी 3 टाइप्स होते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज इन यंग के लिए. मोस्टली हम डॉक्टर्स शुड बी काइंड ऑफ अवेयर अबाउट दैट. सो आई काइंड ऑफ स्किप दिस क्योंकि ये ज्यादा डिटेल हो जाएगा. मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज इन यंग उतना कॉमन नहीं है, सो लेट्स स्किप दिस. अनदर इज लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज इन अडल्ट्स. उसमें क्या हो जाता है, उसमें टाइप 1 जो होता है, जो बच्चों में होता था, वही अब अडल्ट्स में हो रहा है. एंड अनदर इज ब्रॉन्ज डायबिटीज, जो आयरन ओवरलोड के पेशेंट्स में होता है. सो इट्स काइंड ऑफ सेकेंडरी डायबिटीज. सो ये कुछ टाइप ऑफ डायबिटीज होते हैं. हाँ, और सेकेंडरी डायबिटीज में क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस भी होता है. क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, कोई भी पेशेंट जिसका क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस होता है, हमें पता है अल्कोहलिक पेशेंट्स है, उनमें पोस्ट ईआरसीपी पेनक्रियाटाइटिस के बहुत चांसेस होते हैं. So, can any one of you tell me who's a doctor here? Can tell me which drug, anti-diabetic drug, is causing pancreatitis? जो आजकल बहुत फेमस ड्रग है, is also causing pancreatitis. पेनक्रियाज मेन सोर्स होता है इंसुलिन सिंथेसिस का. पेनक्रियाज को ही इन्फ्लेमेट करता है. ऐसी एंटी-डायबिटिक ड्रग एक है. Metformin. No, metformin doesn't cause pancreatitis. It's a GLP-1 agonist, that is exenatide और liraglutide, जो हम इंजेक्शन अब लेते हैं वीकली. जो इंजेक्शन के लिए आई है, जो वेट लॉस ड्रग है, मैजिक वेट लॉस ड्रग है, उससे पेनक्रियाटाइटिस होता है. सो पेनक्रियाटाइटिस भी एक कॉज है सेकेंडरी डायबिटीज का. सो टाइप्स ऑफ डायबिटीज क्लियर हो गया सबको. मोस्ट कॉमन इंडिया में टाइप 2 डायबिटीज है, जो सब में होता है, जो ओबीस है, जो फैट है, जो स्ट्रेस ले रहे हैं, जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है. और हम मेनली फोकस टाइप 2 डायबिटीज पे ही करेंगे. सो मोडी, लाडा, सेकेंडरी डायबिटीज आई टोल्ड यू. टाइप 1 एंड टाइप 2 में डिफरेंस पता होनी चाहिए. टाइप 1 इज ड्यू टू एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी एंड टाइप 2 इज लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है. एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी के मैंने आपको कॉजेस बोले, कैसे बच्चों में हो जाता है, ऑटोइम्यून कंडीशन से हो जाता है, कौन से वायरसेस रिस्पांसिबल है, कॉक्सैकी वायरस है, रुबेला वायरस है, एंटेरोवायरस है. और अगर काउ मिल्क फीडिंग करेंगे, काउ मिल्क फीड करेंगे बच्चे को, या सीजर डिलीवरी हो जाएगी, उनमें टाइप 1 कॉमन होता है. टाइप 2 फैट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबीस पेशेंट्स में, ओबीस पीपल में कॉमन होता है. मेनली डिफरेंशिएट टाइप 2 से कैसे कर सकते हैं, आप इंसुलिन चेक करिए ब्लड में. इंसुलिन की लेवल एब्सेंट होगी, दैट इज इन टाइप 1. टाइप 2 में तो इंसुलिन प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसमें इंसुलिन सिंथेसाइज हो रहा है, बस रेजिस्टेंस है, उसके रिसेप्टर्स के इर्द फैट जम गया है, तो उसी वजह से वो अंदर नहीं जा पा रहा है. इंसुलिन शुगर को अंदर नहीं ले जा रहा है सेल के अंदर. सो यही डिफरेंस है टाइप 1 एंड टाइप 2 में. हाँ, आपने सुना होगा वेट लॉस एंड वेट गेन. क्या कैन एनीवन टेल मी डायबिटीज में क्या कॉमन है, वेट गेन और वेट लॉस? Weight loss. Weight loss. But have you ever seen any lean and thin person who's having diabetes? आप हमेशा देखोगे कोई ओबीस ही होगा. सो हाउ कैन वी नो विच काइंड ऑफ डायबिटीज इज, और क्यों एक का वजन कम है, क्यों एक का ज्यादा है? सो इट्स काइंड ऑफ कंसेप्चुअल, यू शुड अंडरस्टैंड दिस. देखिए, जहाँ पे एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी है, इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को सेल में लेना, और इंसुलिन का सेकंड काम होता है, जहां भी हमारी बॉडी में फैट है उसको स्टोर करना. फैट स्टोरेज भी कराता है, और इंसुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज भी करता है. तो जिस पेशेंट में इंसुलिन बन रहा होगा, दैट इज टाइप 2 पेशेंट्स, उनमें कहीं ना कहीं इंसुलिन है, उनमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि उनमें कोई ऑटोइम्यून कंडीशन नहीं हुई, जस्ट फैट वैट की जमा हो गया था, उस वजह से इंसुलिन नहीं जा पा रहा. तो इनमें इंसुलिन है. टाइप 1 जो होंगे, टाइप 1 जिनमें कंप्लीटली इंसुलिन डेफिशिएंट होगा, दे आर हैविंग वेट लॉस, क्योंकि उनमें इंसुलिन कंप्लीटली एब्सेंट है, और इंसुलिन फैट स्टोरेज भी कराता है. सो आपको लगता है विदाउट इंसुलिन फैट विल गेट स्टोर्ड, बिकॉज इंसुलिन इज द मेन हार्म दैट इज स्टोरिंग फैट. सो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स में वेट लॉस होता है, वाले टाइप 2 पेशेंट्स में हाइपरग्लाइसीमिया प्लस हाइपर इंसुलिनीमिया होता है. जितना ज्यादा ग्लूकोज उतना ज्यादा इंसुलिन, हालांकि इंसुलिन उससे ज्यादा भी स्टिमुलेट हो जाता है. सो उनमें इंसुलिन ज्यादा होता है. तो हमें सीधे पता चलता है, अगर हम ब्लड टेस्ट करेंगे, शुगर भी देखेंगे, इंसुलिन भी देखेंगे, जिसमें इंसुलिन ज्यादा होगा, दैट इज टाइप 2 पेशेंट, क्योंकि जितना हमने खाया उसी के लिए पेनक्रियाज ने इंसुलिन निकाला. दैट इज कॉल्ड इंसुलिन स्पाइक, जिसको हम बोलते हैं. खाने के बाद इंसुलिन स्पाइक. सो काइंड ऑफ यू हैव हर्ड, आपने सुना होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कोई ऐसी चीज मत खाओ जिससे इंसुलिन स्पाइक हो. इंसुलिन स्पाइक का मतलब है कि आपकी बॉडी में जल्दी ज्यादा शुगर आएगा, तो उसकी रेस्पॉन्स में इंसुलिन निकलेगा और इंसुलिन स्पाइक हो जाएगा. तो टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स में हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है, हाइपर इंसुलिनीमिया भी होता है, उनमें वेट गेन होता है. मगर टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट्स में दे आर हैविंग वेट लॉस. सो दीज आर सम डिफरेंस, काइंड ऑफ कॉमन डिफरेंस यू शुड नो. और बहुत माइनर चीजें हैं इसमें, फिर बहुत डिटेल्स भी है, बट आई थिंक इतना काफी है टू नो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट. अगर किसी के घर में टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट होगा, हाउ कैन यू नो कि ये टाइप 1 हो सकता है, टाइप 2 हो सकता है? क्योंकि ट्रीटमेंट डिफर करती है. टाइप 1 में ट्रीटमेंट सिर्फ इंसुलिन है, उसमें आप कोई ड्रग नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें कंप्लीटली इंसुलिन डेफिशिएंट है. पेनक्रियास से इंसुलिन ही नहीं सिंथेसाइज हो रहा है, सो उसमें इंसुलिन देना पड़ता है. टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट में हम कुछ ड्रग्स देते हैं जो इस रिसेप्टर्स पे थोड़ा सेंसिटिविटी बढ़ाती है, ताकि इंसुलिन काम कर पाए. So are you guys understanding what's the main difference between type 1 and type 2? Yes. Okay, thank you. Let's move forward. So weight loss versus weight gain, आप लोगों को समझ आ गया होगा किस में होता है, किस में नहीं होता है. कॉजेस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज भी मैंने आपको डिटेल में बोला कि कैसे ऑटोइम्यून कंडीशंस की वजह से होता है, कैसे काउ मिल्क फीडिंग की वजह से होता है, कैसे सिजेरियन डिलीवरी की वजह से होता है. और यहाँ पे लिखा भी है कि, और हाँ, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिबिलिटी, HLA, TR4, TR3 जीन्स होते हैं, इनकी वजह से भी टाइप 1 डायबिटीज होता है. मॉलिक्यूलर मिमिक्री आई टोल्ड यू, एंड ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एटलीस्ट 6 months इज प्रोटेक्टिव. और सी सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी इंक्रीज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस बाय एटलीस्ट 20 to 25%. सो जो भी बच्चे सिजर से डिलीवर होते हैं, दे आर हैविंग रिस्क ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, नॉट टाइप 2, टाइप 1 डायबिटीज. और कोई डिजीज दैट इज शोइंग मॉलिक्यूलर मिमिक्री, जहां पे आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि मैं वायरस को मारूं, बैक्टीरिया को मारूं, या नॉर्मल सेल्स को मारूं, क्योंकि उनकी रिजेम्बलेंस होती है. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड, हैव यू हर्ड अ रीसेंट आउटब्रेक ऑफ गुलियन बारी सिंड्रोम इन पुणे?
जीबीएस के बहुत केसेस हुए थे पुणे में, जो कैंपाइलोबैक्टर जेजुनी नाम का ऑर्गेनिज्म है, उसकी रिजेम्बलेंस हमारी जो नर्व्स होती है ना उसकी माइलिन जैसी होती है। सो अब फॉर एग्जांपल किसी की बॉडी में कैंपाइलोबैक्टर जेजुनी ऑर्गेनिज्म है, अब इम्यून सिस्टम को मारना है किसी तरह उसको, क्योंकि उसमें प्रोटीन है, इसकी रिजेम्बलेंस थोड़ी किस प्रोटीन जैसी हो जाती है, जो हमारी नर्व्स की माइलिन शीट पे होती है, जो नर्व्स की कवरिंग होती है। सो जो भी जीबीएस का पेशेंट होगा उसमें ऑर्गेनिज्म को तो इम्यून सिस्टम हमारा ट्राई करेगा मारने का, साथ साथ वो अपनी नर्व्स को भी मार लेता है, पेरिफेरल नर्व्स को। सो इसीलिए जो जीबीएस के पेशेंट्स होते हैं उनमें असेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस, पाँव से लेकर ऊपर 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 तक, इवेंचुअली उनका फिर रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। अनदर डिजीज इज लाइक रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर बच्चों में होता है, चाइल्डहुड में हो जाता है, उनमें भी हो जाता है। यूजुअली एक सोर थ्रोट की कंप्लेंट होती है बच्चों में, स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट उसको हम बोलते हैं। तो उसमें एम प्रोटीन होता है, इसको इट्स लाइक ऑल्सो प्रोटीन, एम प्रोटीन होता है। उसकी रिजेंबल जो हमारी हार्ट होती है ना, हार्ट में वेल्व्स होती है जहाँ से ब्लड फ्लो करता है, उसके जैसी होती है। सो बॉडी एक तो उस थ्रोट वाले में जो ऑर्गेनिज्म है उसको मारना चाहती है, और साथ साथ वो उस वेल्व्स को भी अटैक करती है, तो उनमें वेल्वुलर हार्ट डिजीजेस हो जाती है रूमेटिक फीवर के बच्चों में। So these are kind of some organisms and diseases that are showing molecular mimicry also. Molecular mimicry का मतलब होता है resemblance, जो फॉरेन एंटीजन है और जो हमारी बॉडी के ओन सेल्फ टिश्यूज है उनमें कुछ रिजेम्बलेंस हो जाती है। Causes of type 2 diabetes, I told you everything, like hormone resistance, how it happens, कैसे इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, और एक और हार्मोन आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, दैट इज लेप्टिन, उसकी रेजिस्टेंस हो जाती है। कोई भी चीज आप एक्सेस में करोगे दैट इज बैड फॉर योर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डूइंग सेम वर्क, मुझे कोई बोलेगा आप 24 आवर्स वर्क काम करते रहो, इवेंचुअली आई गेट टायर्ड। सेम हैपन विद द पेनक्रियाज, आपकी बॉडी में इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लोड कर रहे हो कि आपका पेनक्रियाज भी थक जाता है एक टाइम पे। इट टेल्स कि आई वोंट सिंथेसाइज इंसुलिन, और इवन इफ आई सिंथेसाइज इंसुलिन, सो ये इंसुलिन जिसको बार बार सिग्नल दे रहा है ना, जो उसके रिसेप्टर्स है, वो भी थक जाते हैं, दे वोंट गेट एक्टिवेटेड नाउ विद इंसुलिन, सो इट्स कॉल्ड रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। दैट्स व्हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस इसी को बोलते हैं हम। और फैट जो डिसेंसिटाइज करता है हमारे टिश्यूज को, फैट की वजह से कोटिंग जाती है, सो इसी वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में। विच आर द हार्मोन शोइंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, आई टोल्ड यू लेप्टिन ओबीस पेशेंट में होता है। ओबीस पेशेंट में लेप्टिन फैट की वजह से बनता है। सो लेप्टिन का मेन काम होता है ब्रेन को बोलना कि वी डोंट नीड एनी मोर सोर्स ऑफ फूड, हमारे बॉडी में इनफ फैट है, इनफ एनर्जी है, सो वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ फूड नाउ। सो आपका एपेटाइट कम करेगा, आपको खाने का मन नहीं करेगा। बट जब जब ओबीस पेशेंट को आप देखोगे, दे ओवर ईट, वो फिर भी खा रहे होते हैं। अगर लेप्टिन उनमें बढ़ रहा है, व्हाई दे ईट? इसलिए क्योंकि लेप्टिन की भी रिसेप्टर्स की रेजिस्टेंस हो जाती है, दे कांट सिग्नल नाउ, दे कांट सेंड एनी सिग्नल टू द ब्रेन नाउ, उनमें भी रेजिस्टेंस हो जाती है। कोई भी चीज जो आपकी बॉडी में बहुत टाइम तक एक्सेस में होगी, इट विल लेड टू रेजिस्टेंस। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसमें रेजिस्टेंस होती है, लेप्टिन एक हार्मोन है जिसमें रेजिस्टेंस होती है। सो अब सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज पे आते हैं। कुछ सिम्टम जो पेशेंट कंप्लेंट करता है कि उसको क्या क्या सिम्टम्स होंगे और ये क्यों होंगे। फर्स्ट सिम्टम इज वीकनेस। वीकनेस इसीलिए हो जाती है बिकॉज सेल्स आर नॉट गेटिंग ग्लूकोज। आपकी बॉडी में जो सेल्स है, जो आपकी मसल्स, उनको ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए, उनमें ग्लूकोज नहीं जा रहा, तो आपकी ऑब्वियस कंप्लेंट वीकनेस होगी। एक्सेसिव यूरिनेशन, पॉलीयूरिया, क्योंकि ये ग्लूकोज है, ऑस्मोटिकली एक्टिव है, किडनी इसको फिल्टर करेगी, अपने साथ और वाटर लेगी, सो पॉलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिनेशन। पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, एक्सेसिव थर्स्ट, आपको लगता नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट्स विल बी डिहाइड्रेटेड क्योंकि उनका बहुत सारा यूरिन जा रहा है बॉडी में से, कुछ कुछ सेकंड्स बाद या कुछ कुछ मिनट्स बाद दे आर लाइक वी वांट टू गो टू वॉशरूम, वी वांट टू यूरिनेट, दैट्स व्हाई दे वांट टू ड्रिंक मोर, दैट इज पॉलीडिप्सिया। पॉलीफेजिया, एक्सेसिव ईटिंग, दे वांट टू ईट मोर। So these are some symptoms. Or weight loss or weight gain, I told you type 1 diabetes में you can see weight loss, but in type 2 patients they are usually having weight gain because उनकी बॉडी में hyper insulinemic state होती है, insulin lipogenic है, that is storing the fat also. So these are some common symptoms. And can anyone tell me about the signs? Symptoms okay that the patient is going to tell us. Signs that a doctor can see. What are the signs of diabetes? हम क्या देखेंगे diabetic patients? If he's, any patient is sitting in front of me, how can I know he's having diabetes? Just by seeing or do some examinations. Anyone? I guess for type 2, there is excessive swelling on face. एक्सेसिव स्वेलिंग के बहुत सारे कॉजेज भी है, यू कांट कंफर्मली से इट्स डायबिटीज। हमें स्पेसिफिक साइंस ऑफ डायबिटीज पे फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, डायबिटिक पेशेंट में सबसे पहला कॉमन साइन जो वी कैन सी, हम बोलेंगे अपनी जीभ बाहर निकालो, विल सी ही और शी इज डिहाइड्रेटेड, उनकी टंग वाइट होगी, सो वी कैन सी दे आर डिहाइड्रेटेड। फ्यू थिंग्स मोर वी कैन सी, हम हाइपरटेंशन, अगर वी विल चेक द ब्लड प्रेशर, डायबिटिक पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली हाई होगा क्योंकि इनका ब्लड जो होगा थिक होगा, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, दे विल हैव हाइपरटेंशन इवेंचुअली, दे आर मोर प्रोन टू डेवलप हाइपरटेंशन। सो डायबिटिक पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, और इसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोलते हैं, जिसमें कुछ कुछ चीजें जो मेटाबॉलिक होती है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, वेट गेन, ये सारी ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आती है। सो ये काइंड ऑफ साइन भी हम हाइपरटेंशन देख सकते हैं। हाँ, हम उनके एंकल्स में देख सकते हैं कि अगर कोई अल्सर होगा बहुत टाइम से, दैट अल्सर इज नॉट हीलिंग। डायबिटीज पेशेंट की जब सर्जरी भी होती है ना, सर्जन आर इवन अफ्रेड टू डू द सर्जरीज। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर इसकी बॉडी में इन्फेक्शन है, दिस इन्फेक्शन विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू हील, या कहीं पे कोई वोंड है। क्यों? क्यों ऐसा क्यों होता है? कहीं भी आप देखेंगे ना, अगर आपके दांत भी खराब हो जाएंगे ना, दैट इज बिकॉज डॉक्टर बोलता है आप शुगर मत खाओ, आप चॉकलेट मत खाओ, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो हमेशा उन्हीं चीजों से अट्रैक्ट होता है, दैट इज स्वीट। आप देखेंगे ना कहीं पे शुगर भी गिर जाता है तो चींटियां भी अट्रैक्ट हो जाती है। सेम इज इन आवर बॉडी, जहां पे भी शुगर है बैक्टीरिया विल गेट अट्रैक्टेड। सो डायबिटीज प्रोन होते हैं इन्फेक्शन को।
और इनका इसीलिए वो अगर फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट इज हैविंग मतलब उनको लग गई फॉर एग्जांपल पैर में, वो हील भी जल्दी नहीं होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, क्योंकि एट लास्ट इसका ब्लड थिक हो गया है। वो थिक इतना हो गया है कि वो जो डिपेंडेंट साइड से जैसे उसका पैर है, इट वोंट गेट दैट मच सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो एक नॉर्मल इंसान में होता है। सो ब्लड सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन कम मिलेगा, सो दैट अल्सर फिर वो बहुत बहुत बड़ा हो जाता है, जिसमें फिर लास्ट में एम्प्यूटेशन भी करना पड़ता है। इसको नॉन हीलिंग अल्सर, डायबिटिक फुट बोलते हैं इसको। उसमें एम्प्यूटेट करना पड़ता है, फुट काटना पड़ता है, या इवेंचुअली अगर कोई फिंगर हो गया होगा, थंब पे हो गया होगा, दैट दैट फिंगर भी काटना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड एम्प्यूटेशन। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी सीरियस कि डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है। दीज आर आल्सो द साइंस ऑफ डायबिटीज। यस, एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स, बहुत सारे आज लड़कियां जो है ना, दे आर हैविंग पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। उसमें भी एक फाइंडिंग होती है एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स की, जो उनका नेक होता है, इन द नेक दे आर हैविंग डार्क वेलवेटी पैचेस, या देयर अंडर आर्म्स, आर्मपिट्स में ना, दे आर हैविंग डार्क अंडर आर्म्स, और द डार्क डार्क रैश जैसा होगा उनकी नेक पे, दैट्स कॉल्ड एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स। ये भी डायबिटिक पेशेंट्स में हम देख सकते हैं। और फॉर एग्जांपल आप उनकी टंग में, जब आप डायबिटिक पेशेंट देखेंगे ना, उनकी टंग में बहुत सारा ऑरल थ्रश कैंडिडा इन्फेक्शन होता है। दे आर मोर प्रोन टू फंगल इन्फेक्शन। दीज आर सम फाइंडिंग्स दैट वी कैन सी। क्लिनिक पे कोई आया, घर पे कोई होगा, अब नॉर्मली भी अगर देखेंगे उनका कहीं पे कोई लग गई होगी, उसको बहुत टाइम लग रहा होगा ठीक होने में, दैट्स ऑल्सो अ साइन ऑफ डायबिटीज। और डिहाइड्रेशन भी आप देख सकते हैं। और डायबिटीज में आई साइंस भी कुछ होते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में यूजुअली ब्लड विजन होता है। एक नॉर्मल इंसान और एक डायबिटिक पेशेंट का अगर आप आई टेस्ट कराएंगे ना, द डायबिटिक पेशेंट्स आर यूजुअली दे सी ब्लड एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि उनमें डायबिटीज में क्या हो जाता है, डायबिटीज इज हैविंग अ स्टेज जहाँ पे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है। उसके दो टाइप्स होते हैं, एक नॉन प्रोलिफरेटिव होता है, एक प्रोलिफरेटिव हो जाता है। जहाँ जहाँ हमारी बॉडी में, जहाँ पे ना मतलब छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है, छोटे छोटे ब्लड वेसल सबसे पहले इफेक्ट हो जाएंगे। जैसे आंख की ब्लड वेसल है, दैट इज काइंड ऑफ थिन स्मॉल, वही ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी। वहाँ पे ग्लूकोज जम गया होगा, आपको लगता नहीं आंख का ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। सो ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। सो क्या हो जाता है फिर, जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वो नई वेसल्स भी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम जब भी आंखों का टेस्ट एक डायबिटिक पेशेंट में कराते हैं ना, वो डू फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी, जहाँ पे हम फ्लोरेसेंट डाई देते हैं, फिर हम चेक करके कहाँ कहाँ से हमें लग रहा है कि नई वेसल्स बनी है, वहां से वो डाई लीक हो रहा है। सो उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। जो प्रोलिफरेटिव डायबिटिक पेशेंट्स में यूजुअली न्यूवैस्कुलराइजेशन, जहाँ पे नई ब्लड वेसल्स बनती है, और जिन जिनमें ऑलरेडी अभी न्यू वेसल्स नहीं बनी होती, उनमें उतना ज्यादा सीवियर डैमेज नहीं होता है। सो इट्स कॉल्ड प्री प्रोलिफरेटिव, जहाँ पे कुछ कुछ स्पॉट्स जैसे आपको दिखेंगे, जहाँ जहाँ पे ब्लॉक हो गई होगी आंखों की ब्लड सप्लाई, देयर विल यू सी सम स्पॉट्स लाइक कॉटन वूल स्पॉट्स, डॉट एंड ब्लॉट हेमरेज आर सीन्स। वो हम यूजुअली फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी से देखते हैं। सो हु शुड बी टेस्टेड नाउ? कौन किस किस का टेस्ट होना चाहिए डायबिटीज का? एनीवन हु इज ओबीस, एनीवन हु इज हैविंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एनीवन हु इज हैविंग एज मोर देन 40, उनका टेस्ट होना चाहिए। सो या जिसकी कंप्लेंट्स होगी डायबिटीज की, सो दीज पीपल शुड गेट टेस्टेड फॉर डायबिटीज। नॉट एवरीवन, बट अ फ्यू पीपल जिनके सिम्टम्स वीकनेस होंगे, जो आपको बोलेगा कि मुझे ज्यादा प्यास लग रही है, मुझे ज्यादा खाने का मन कर रहा है, और मेरी बॉडी में खाकर भी एनर्जी नहीं आ रही है। सो उन पेशेंट्स का जरूरी डायबिटिक टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डजंट इवन नो दे आर हैविंग डायबिटीज। फ्यू ऑफ देम आर प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक का मतलब होता है कि आपकी डायबिटिक रेंज का जो शुगर होता है ना, उससे कुछ थोड़ा कम होगा, उसको हम कर सकते हैं रिवर्स। दैट कैन बी रिवर्स अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे। मगर एक बार अगर डायबिटीज डायग्नोज हो गया, इट कैन नॉट बी रिवर्स, इट्स जस्ट कंट्रोल। फिर लाइफ लॉन्ग इसको कंट्रोल करना पड़ता है, आपको हमेशा शुगर को कंट्रोल करना होता है। इट कांट बी रिवर्स एट ऑल। दे कांट लिव अ लाइफ ऑफ अ नॉन डायबिटिक पेशेंट एट ऑल। उनको सिर्फ कंट्रोल में रख सकते हैं। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन और नॉट। कैन यू टेल मी, इज इट काइंड ऑफ giving you some benefit or not? Yes, it's beneficial. About diabetic microangiopathy. Yeah, I'll tell you after कुछ complications में हम डायबिटिक माइक्रोएंजियोपैथी भी पढ़ेंगे आगे जाके। सो हु शुड बी टेस्टेड, यहाँ तक क्लियर? Yes, yes. Okay. So test to be done for diagnosing diabetes. We all know that there are some tests हम diagnose diabetes के लिए करते हैं। There is हम घर पे भी कर सकते हैं, फास्टिंग ब्लड सैंपल ले सकते हैं, रैंडम ब्लड सैंपल ले सकते हैं, और बेस्ट होता है हम HbA1c करें। HbA1c का मतलब होता है ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन, ठीक है। सो फास्टिंग ब्लड शुगर किसी का भी अगर मोर देन 126 mg पर डेसीलीटर आ रहा है, ही इज हैविंग डायबिटीज। रैंडम ब्लड शुगर किसी का मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर आ रहा है, ही और शी इज हैविंग डायबिटीज। HbA1c मोर देन 6.5 और इक्वल टू 6.5, ही और शी इज हैविंग डायबिटीज, दैट इज कंफर्म। अब ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल समवन इज कमिंग टू मी, मैंने उसका चेक किया ब्लड शुगर लेवल, तो मुझे हाई आया तो आई टेल हिम ही इज हैविंग डायबिटीज। वी शुड एटलीस्ट डू द सैम्पलिंग at least two times, two separate occasions when we should test diabetic patients also. So these are some tests we should do. और प्री डायबिटिक का अलग वैल्यू है, बट दीज आर द टेस्ट। HbA1c इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई टेल यू अबाउट HbA1c आल्सो आफ्टर ऑल। सो HbA1c का मतलब होता है, इट्स लाइक जो हमारे ब्लड है, ब्लड में आरबीसीज है, आरबीसीज में हेमोग्लोबिन है। इस हेमोग्लोबिन के साथ कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, ये हमें बताता है। ग्लूकोज ब्लड में ही है ना, तो ग्लूकोज कितना हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो गया है, इसको हम HbA1c बोलते हैं, इसको हम ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन भी बोलते हैं। आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पैन इज लाइक 120 days। डज एनीवन नो, हमारी बॉडी में जो आरबीसी है, इट्स हैविंग द लाइफ स्पैन ऑफ ओनली 120 days। 120 days के बाद आपकी बॉडी नई आरबीसी बनाती है। सो डू यू थिंक जो HbA1c है, अगर आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 days है, HbA1c से आपको कितने महीने का वैल्यू पता चलेगा? 3 महीने का आपको पता चलेगा कि दिस पेशेंट का 3 महीने से डायबिटीज कंट्रोल में है या नहीं है, क्योंकि ये 3 महीने तक अटैच रह सकता है उस हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ। कुछ कुछ कंडीशन है जहाँ पे HbA1c वैल्यू जो होता है, वो एज पर आपकी कंप्लेंट्स के साथ मैच नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल
किसी में हाई HbA1c है, लाइक हम 6.5 डायबिटिक रेंज पढ़ते, किसी में मोर देन 11 आप देखोगे हाई HbA1c है, पर आप उसमें देखोगे इज नॉट हैविंग एनी सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज. डू यू थिंक यू कैन डायग्नोज हिम एज डायबिटिक पेशेंट और नॉट? HbA1c हाई है बट ही इज नॉट हैविंग एनी कंप्लेंट ऑफ डायबिटिक पेशेंट, बट HbA1c तो हम कंफर्मेटरी मान के चलते हैं. डू यू थिंक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, उस टाइम पे बॉडी ट्राइज टू कीप द आरबीसी फॉर लॉन्ग टाइम, सो उनमें काफी देर तक होता है, तो उनमें उतना ग्लूकोज अटैच नहीं हो जाता, और अगर होता भी है दैट इज काइंड ऑफ उनमें आरबीसीज बहुत ज्यादा होती है, तो ग्लूकोज अगर अटैच भी हो जाएगा तो आरबीसी का वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्लूकोज. यूरियाज इज एन एंटी डायबिटिक ड्रग दैट शुड नॉट बी गिवन इन अ पेशेंट जिसमें G6PD डेफिशिएंसी है. सो उस Okay. जब भी Deficiency patients, not in हाँ others. ओनली, हाँ सिर्फ G6PD, तो G6PD का पहले टेस्ट करना है जिसको भी सल्फोनाइल यूरिया देना है. Okay. तो G6PD का टेस्ट हो गया, अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो तब प्रॉब्लम है, क्योंकि तब हेमोलाइसिस हो सकता है. Okay. So thank you sir for interacting. So what are the complications of diabetes? First organ, heart, kidney, your brain, your eyes. These are some organs that are getting affected by diabetes. So heart attack हो सकता है क्योंकि ब्लड थिक हो जाएगा, सर्कुलेशन पोर हो जाएगी, एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाएगा. हार्ट अटैक बहुत कॉमन है डायबिटिक पेशेंट्स में. स्ट्रोक भी सेम, सर्कुलेशन कम हो जाएगी. डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी फेलियर सेम, क्योंकि किडनीज भी इफेक्ट हो रही है बार बार, इतना ग्लूकोज को फिल्टर करते करते, शुगर को फिल्टर करते करते, और साथ में प्रोटीन भी लीक हो रहा है, सो किडनी फेलियर भी हो सकता है. इन्फेक्शंस, डायबिटीज पेशेंट आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस. डायबिटिक फुट, डायबिटीज में नर्व डैमेज होती है जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी भी बोलते हैं. डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट्स की कंप्लेंट होगी कि उनको रात को टिंगलिंग सेंसेशंस होगी, उनको कुछ पिन एंड प्रिक नीडल सेंसेशंस होगी, दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ, उनकी आप अगर किसी थिन थ्रेड से भी आप टेस्ट करेंगे ना उनके फुट को, तो उनकी सेंसेशन भी कम हो जाएगी क्योंकि नर्व्स भी डैमेज हो रही है. सो दीज आर सम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज में. यू आर हैविंग इन्फेक्शंस इन योर टीथ बिकॉज ऑफ इंक्रीज शुगर. गेस्टेशनल डायबिटीज में यू आर हैविंग लार्ज बेबी सिजर जिसमें हमें करना पड़ता है. सो दीज आर सम कॉम्प्लिकेशंस दैट अ डायबिटिक पेशेंट कैन गो थ्रू. सो व्हाट इज द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म? फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट हैविंग डायबिटीज, सो इफ आई ईट समथिंग, what will be my metabolism as compared to the person who's having diabetes? For example, sir is eating right now, so let's imagine sir is eating something, so let's imagine on him, for example, sir will eat rice right now. This rice will go into the stomach, then it will be digested and goes into the intestine. अब इस राइस में से शुगर निकल रहा है, ठीक है, that sugar will go into the blood, ठीक है. अब the sir, for example, if the sir is having diabetes, for example, so ये शुगर अब आपके सर की सेल्स में नहीं जा रहा है बिकॉज ही इज हैविंग सम इंसुलिन रेजिस्टेंस. ओके, अब बॉडी किस पे रिलाई करेगी एनर्जी के लिए? हाउ विल बॉडी प्रोड्यूस एनर्जी नाउ? क्योंकि कार्ब से तो उनको एनर्जी नहीं मिल रही होगी, इवन इफ दे आर ईटिंग राइट नाउ. He won't get any energy because of anything he's eating. Now body will try to do? Body will try to break the fat in the body. फैट से एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, जिसको हम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स बोलते हैं. जब फैट ब्रेक डाउन होगा बॉडी में, तो डायबिटिक पेशेंट्स में आपको वेट लॉस भी दिखना लग जाएगा धीरे 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 धीरे. जिनमें बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज चलता है टाइप 2, उनमें फिर धीरे धीरे वेट गेन के बजाय वेट लॉस भी होने लग जाता है, क्योंकि अब उनका फैट ब्रेक हो रहा है एनर्जी के लिए बीटा ऑक्सीडेशन की वजह से. ये मोस्टली टाइप 1 पेशेंट्स में होते हैं जिनमें एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन है. फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज हैविंग टाइप 2 ओनली, उनमें कुछ ना कुछ शुगर पहुंच रहा है अंदर सेल्स के, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शुगर पहुंच रहा होगा. नॉट एवरी शुगर इज इन द ब्लड, सो दे आर काइंड ऑफ, उनकी बॉडी में थोड़ी एनर्जी शुगर से भी आती होगी, सम इज गेटिंग थ्रू फैट, उनका फैट भी ब्रेक डाउन हो रहा होगा, पर इवेंचुअली वो हाइपर इंसुलिनिमिक स्टेट में ही है. सो हाइपर इंसुलिनिमिक इसीलिए क्योंकि वो इफ दे आर ईटिंग समथिंग शुगरी, पेनक्रियास से इंसुलिन स्टिमुलेट हो ही रहा है एट लास्ट, तो शुगर और इंसुलिन दोनों स्पाइक में रहेंगे, और इंसुलिन जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा फैट स्टोर करना स्टार्ट करेगा. तो एक साइड से फैट भी बन रहा है, एक साइड से फैट भी टूट रहा है, तो ये काइंड ऑफ बैलेंस ही हो रहा है. सो इस पेशेंट में आपको उतनी वेट डिफरेंस भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका एक साइड से फैट भी बन रहा है इंसुलिन की वजह से, और एक साइड से इनका फैट भी टूट रहा है, तो उसमें ज्यादा वेट डिफरेंस आपको नहीं मिलेगी. बट टाइप 1 वाले पेशेंट में क्या होगा? टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स में आपका सारा फैट ही बॉडी तोड़ती है एनर्जी के लिए. सो वो काइंड ऑफ वो बहुत लीन एंड थिन होते हैं, और कीटोन बॉडीज ही प्रोड्यूस हो रही है उस बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट की वजह से, जो एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड या बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटिक एसिड है. टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट की सबसे कॉमन इमरजेंसी जो है दैट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. उसमें कीटोन बॉडीज बनती है. कीटोन बॉडीज आप सीधे पता चल सकता है कि अगर आप उस पेशेंट के मुंह से एसीटोन ब्रेथ आ रही है ना, कुछ फ्रूटी ऑर्डर आ रहा है, या इस काइंड ऑफ हाइपर वेंटिलेटिंग, कुछ स्मॉल ब्रीथिंग उसको बोलते हैं. सो तब आपको समझ आएगा नहीं, ये इसकी कीटोएसिडोसिस की स्टेज चल रही है, उसको नॉसिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, क्योंकि कीटोन बॉडीज एसिडिक है. बॉडी चाहेगी इन कीटोन बॉडीज को बाहर निकालना थ्रू वोमिटिंग. सो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस है, दे कैन गेट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, और वो आपको सिम्टम्स से पता चल जाएगा. एंड यस, आपने सुना भी होगा कीटो डाइट. कीटो डाइट भी होती है हाई प्रोटीन डाइट, जिसमें हम लो कार्ब्स लेते हैं और हाई प्रोटीन लेते हैं और फैट ज्यादा लेते हैं. सो कीटो डाइट और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज काइंड ऑफ सिमिलर. सो कोई भी इंसान जो कीटो डाइट पर रिलाई करता है फॉर वेट लॉस, उनमें भी कीटोएसिडोसिस हो जाती है स्टेट. उनमें भी यही एसिडोसिस या एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटिक एसिड, एसीटोन्स, दीज आर द कीटोन बॉडी जो फैट ब्रेकडाउन से बन रहे होते हैं. सो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म और डायबिटिक पेशेंट के मेटाबॉलिज्म में, did you guys understand the difference? Jaberia Mohammed Junaid has a question. Can we reverse diabetes? We can't reverse diabetes. We can only reverse pre-diabetic patients. We cannot reverse diabetes. It's just a myth. We can only control diabetes. We cannot reverse it at all. आप इसको कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि आपकी बॉडी अब अडेप्ट हो गई है. आपकी बॉडी को शुगर पसंद ही नहीं है. It doesn't like sugar for energy at all.
सो यू कैन नॉट रिवर्स डायबिटीज, यू कैन जस्ट प्रिवेंट इट, आप उसको कंट्रोल में रख सकते हो, कॉम्प्लिकेशंस आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, यू कांट यूजुअली रिवर्स डायबिटीज। जो कंफर्म डायबिटिक केस है, प्री डायबिटिक पेशेंट्स यू कैन रिवर्स, क्योंकि अभी उनका उस लेवल पे बॉडी का सिस्टम अडेप्ट नहीं हुआ है। अगर वो अभी से लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे सो दे कैन रिवर्स। सो व्हाट आर द डायबिटिक इमरजेंसीज? क्यों हम डायबिटीज पे इतना फोकस अभी तक कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हमें समझ आ गई कि हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, कैसे हो सकती है, दैट आल्सो टोल्ड यू, डायबिटिक फुट हो सकता है, नर्व्स डैमेज हो सकती है। पर कभी डायबिटिक पेशेंट की इमरजेंसी भी होती है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डायबिटिक इमरजेंसी है। दैट्स व्हाई आई टुक दिस वेबिनार, क्योंकि डायबिटिक इमरजेंसी जो है उसके बारे में अवेयर करना कि क्या क्या ऐसी इमरजेंसी है जो आपको बहुत जल्दी से जल्दी पेशेंट को जल्दी हॉस्पिटल लेना चाहिए, या अगर आपके हाथ में कुछ है यू कैन ट्राई टू डू समथिंग। सो फर्स्ट इज टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ये होता है अगर टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट जिसको इंसुलिन चाहिए, एनर्जी शुगर, क्योंकि इनमें एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन है, दे नीड इंसुलिन। So जो भी ग्लूकोज उनकी बॉडी में होगा, लेट इट गो इनटू द सेल। सो फॉर एग्जांपल अ टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट हैज नॉट नोइंग ही इज या इग्नोर कर रहा है फॉर एग्जांपल फॉर लॉन्ग टाइम, एंड इवेंचुअली ही इज नॉट टेकिंग इंसुलिन आल्सो। सो क्या हो जाएगा, बॉडी फैट तोड़ने लग जाएगी एनर्जी के लिए। सो जब फैट टूटेगा, फैट से आपकी कीटोन बॉडीज बनती है, जो मैंने आपको बोली 3 कीटोन बॉडीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटिक एसिड। ये 3 इंपॉर्टेंट कीटोन बॉडीज है जो एसिडिक एनवायरनमेंट बॉडी में बनाती है, जो जिसकी वजह से पेशेंट नौशिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, क्योंकि बार बार वॉमिट कर रहा है, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा फुल, और ब्लड शुगर लेवल भी रेज है क्योंकि कोई इंसुलिन ही नहीं ले रहा है, दैट पेशेंट इज नॉट टेकिंग इंसुलिन, तब तो कुछ ग्लूकोज अंदर चले जाता। सो उसका ब्लड शुगर भी रेज्ड है, उनका यहाँ से वॉमिटिंग भी हो रहा है क्योंकि उनकी बॉडी में कीटोन बॉडीज बन गई है। सो उनमें एब्डोमिनल पेन भी होगी, नौशिया, वॉमिटिंग होगी। सो दीज पेशेंट आर डिहाइड्रेटेड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट्स में। सो दीज कीटोन बॉडीज और टॉक्सिक भी होते हैं हमारे लिए। सो इसको हमें इमरजेंसी कंडीशन में बहुत जल्दी इसको डायग्नोज और ट्रीट करना चाहिए। जिसकी ट्रीटमेंट होती है, पहले आप पेशेंट को फ्लूइड पे लगाओ और साथ में इंसुलिन दे दो होगा, और वो आईवी देना होता है। यूजुअली हम सबक्यूटेनियस इंसुलिन देते हैं, पर डायबिटिक इमरजेंसीज में वी हैव टू गिव द आईवी इंसुलिन ताकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ठीक हो जाए। ये टाइप 1 पेशेंट में होता है। टाइप 2 पेशेंट जो डायबिटीज के होते हैं, दे आर हैविंग हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट, उसमें कीटोन बॉडीज नहीं बनती। जो टाइप 2 पेशेंट्स होंगे ना, उनको ध्यान रखना है कि हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट में वो चले जा सकते हैं अगर उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा है। सो ब्लड शुगर बहुत है, इसका मतलब ये ब्लड वेसल में बहुत ज्यादा शुगर है। सो ये शुगर एटलीस्ट आपको लगता है ब्लड को थिक ही बनाएगा। सो हाइपर ग्लाइसेमिक या हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम भी हम इसको बोलते हैं। दिस शुगर विल कॉज एक्सेसिव यूरिनेशन। सो इन पेशेंट में भी हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट वाले पेशेंट जो होते हैं, इनमें भी सीवियर डिहाइड्रेशन होती है, बट इन एब्सेंस ऑफ कीटोन बॉडीज। उनका पीएच जो होता है ना, वो नॉर्मल होता है। और जो कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट्स होते हैं, उनका पीएच आप चेक करेंगे ना, जब एबीजी करते हैं, आर्टरियल ब्लड गैस एनालिसिस, दैट विल बी लेस, pH will be less, that is acidic, और बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन will also be less। अगर हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट वाले जो होंगे, उनमें पीएच या एबीजी में आपको कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं मिलेगी। बस आपको लगेगा सीधा, अगर आप उस पेशेंट को देखोगे ना, दैट विल बी सीवियरली डिहाइड्रेटेड, आपको शक्ल से लगेगा कि इसमें बहुत डिहाइड्रेशन है। Another thing that is an emergency but that we don't study in एज डायबिटीज में, वो हम एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज की ट्रीटमेंट में पढ़ते हैं, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया। अभी तक तो हम हाइपरग्लाइसीमिया पढ़ रहे हैं ना। अनदर इमरजेंसी इज हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या हो जाएगा, पेशेंट फॉर एग्जांपल इंसुलिन जो है, इंसुलिन सारा, अगर एक टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट है वो इंसुलिन ले रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इज टेकिंग इंसुलिन, इंसुलिन सारा शुगर जो है ब्लड में वो सेल्स में डालेगा, तो ब्लड में अब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, यानी शुगर लेवल बहुत कम हो जाएगी। हमारे को ब्लड में यूजुअली ना हाइपो करना है ना हाइपर करना है, हमें यू ग्लाइसेमिक रखना पड़ता है, नॉर्मल रखना पड़ता है, ना कम करना चाहिए ना ज्यादा करना चाहिए। अब इंसुलिन से हाइपो स्टेट हो जाएगा, सारा शुगर जो है वो सेल्स में जाएगा, इंसान को एनर्जी आएगी, पर उसकी ब्लड में बहुत कम शुगर है, ठीक है, वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपका ट्रेमर्स, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बहुत तेज हो जाएगी, शिवरिंग होने लग जाएगी, पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा, उसको बहुत ज्यादा भूख लगेगी और स्वेटिंग हो जाएगी। सो ये एक इमरजेंसी है जो हाइपोग्लाइसीमिया की, जो मैनेज करना आना चाहिए इंसान को उस टाइम पे, क्योंकि ये बहुत इमरजेंसी कंडीशन है। और इसमें कहीं ना कहीं बहुत टाइम पर कुछ चीजें स्पॉइल करती है हाइपोग्लाइसीमिया को, दैट इज फॉर एग्जांपल अ पेशेंट हु इज टेकिंग इंसुलिन इज आल्सो टेकिंग अ बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर का मास्किंग इफेक्ट हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया में। बीटा ब्लॉकर अगर कोई ले रहा है ना, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, अगर वो पेशेंट डायबिटिक है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर कुछ रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। जैसे हमारा B1 हार्ट में जो है, टैकीकार्डिया जो होता है ना, हम बीटा ब्लॉकर लेते ही इसीलिए क्योंकि जब हार्ट रेट ज्यादा होती है उसको कम करने के लिए लेते हैं। सो B1 रिसेप्टर जो हार्ट में, बीटा ब्लॉकर उसको ब्लॉक करेगी तो हार्ट रेट कम हो जाएगी। ये एक सिम्टम है हाइपोग्लाइसीमिया का, हार्ट रेट ज्यादा हो जाना। तो ये सिम्टम हमें पता ही नहीं चलेगा क्योंकि बीटा ब्लॉकर ने ब्लॉक कर दिया, ब्रैडिकार्डिया होगा, यानी हार्ट रेट कम हो जाएगी। सो ये सिम्टम्स कुछ मास्क हो जाते हैं बीटा ब्लॉकर से। इवेंचुअली ट्रेमर्स जो होते हैं, जो B2 स्टिमुलेशन से हो जाता है, जैसे कोई एस्मा पेशेंट होता है ना, दे टेक बीटा 2 एगोनिस्ट, सैल्ब्यूटामॉल वगैरह। सो उनमें ट्रेमर्स देखे जाते हैं सब। अगर हम बीटा 2 भी ब्लॉक करेंगे ना, ये ट्रेमर्स भी हमें नहीं दिखेगा, और ये वन ऑफ द सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। सो एनीवन हु इज हैविंग डायबिटीज एंड इज टेकिंग बीटा ब्लॉकर आल्सो, उसमें सिर्फ एक ही सिम्टम है जो हमें बोल सकता है कि इस पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है। कैन एनीवन टेल मी कौन सा सिम्टम ऐसा है जो बीटा ब्लॉकर प्लस एक डायबिटिक पेशेंट में हमें हाइपोग्लाइसीमिया का सिम्टम एक ही दिखेगा? क्योंकि ज्यादा हार्ट रेट तो हमें नहीं दिखेगी, ना हमें ट्रमर्स दिखने को मिलेंगे। एक ही सिम्टम ऐसा है जो हमें दिख सकता है बीटा ब्लॉकर, जो मास्क नहीं कर पाता है हाइपोग्लाइसीमिया में, दैट इज स्वेटिंग।
स्वेटिंग कोलिनर्जिक कंट्रोल में, दैट इज नॉट इन एडरेनर्जिक कंट्रोल। सो स्वेटिंग हमें दिखती है हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट में, उनमें एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही होती है। नॉर्मल हाइपोग्लाइसेमिक हु इज नॉट टेकिंग बीटा ब्लॉकर, स्वेटिंग, ट्रेमर्स एंड पैल्पिटेशंस, ठीक है, ये सिम्टम्स है हाइपोग्लाइसीमिया के। इससे आपको पता चलता है, उसको चक्कर आ रहे होते हैं, हार्ट रेट ज्यादा होती है, हैविंग स्वेटिंग आल्सो। मगर बीटा ब्लॉकर जो ले रहा है उस पेशेंट में आपको सिर्फ स्वेटिंग से ही पता चल जाएगा, नहीं ये हाइपोग्लाइसेमिक है। सो हाउ कैन वी मैनेज डायबिटीज? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक सैम्पल डाइट शेयर करूंगा जो आप लोग फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हम इस वेबिनार में फ्री सैम्पल डाइट्स भी दे रहे हैं। सो ये आपको एज अ पीडीएफ भी आई विल शेयर आफ्टर दिस वेबिनार ऑल्सो। सो ये सैम्पल डाइट जो है, इट्स काइंड ऑफ इंडियन डाइट दैट वी कैन टेक। जिनको भी डायबिटीज है, अगर उनकी फैमिली में भी, दिस सैम्पल डाइट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप ये 1 मंथ या एटलीस्ट 1 मंथ आप स्टार्ट करिए डाइट लेना, एंड यू कैन सी योर ग्लूकोज विल बी कंट्रोल। सो ये सैम्पल डाइट जो है दैट आई हैव मेड माई सेल्फ, इसमें मैंने सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, आपको समझना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे व्हाइट राइस, ये आपको नहीं खाना है। आपको वो खाना खाना है जिसमें आपका ब्लड शुगर धीरे 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 रेज हो जाए और बॉडी उसको यूटिलाइज भी कर पाए। अगर आप इमीडिएट खा रहे हैं, समझिए व्हाइट राइस खा रहे हैं, आपका इमीडिएट शुगर लेवल रेज हो रहा है, ठीक है, इट्स कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये होता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल वो जल्दी एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड शुगर लेवल रेज हो गया, और बॉडी को अभी करना ही नहीं है वो यूटिलाइज। धीरे 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 अगर शुगर लेवल रेज हो जाएगी ना, बॉडी उसको इवेंचुअली यूटिलाइज कर ही लेगी किसी ना किसी काम में। अगर आप चल भी रहे हो, 2 मिनट वॉक कर रहे हो, वो यूटिलाइज करेगी। तो हमें सिंपल सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बंद करने हैं और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे शिफ्ट करना है। सो वही डाइट मैंने यहाँ पे शेयर की है। जब मॉर्निंग में आप एम्प्टी स्टोमक, यू शुड टेक 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर विद लेमन। इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो आप कुछ भी दिन में खाएंगे तो आपका अच्छे से डाइजेशन हो जाएगा। सो मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमक, 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर विद लेमन। ब्रेकफास्ट, 2 बॉइल्ड एग्स इज गुड फॉर प्रोटीन। यू कैन टेक अ ब्राउन ब्रेड, दैट इज कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये इवेंचुअली आपको अच्छी खासी एनर्जी देगी। बॉडी को टाइम लगेगा ब्राउन ब्रेड को तोड़ने में। सो आपको धीरे 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 जब भी टूट रही होगी, शुगर लेवल रेज भी हो रहा होगा, वो शुगर यूटिलाइज भी हो जाएगा। ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं आप, और 1 कप टी भी आप पी सकते हैं, जो इंडियन की फेवरेट है। विदाउट शुगर यू कैन टेक इट, ठीक है। फिर ब्रेकफास्ट के बाद यू कैन टेक अ फ्रूट, 1 फ्रूट, यू कैन टेक एनी फ्रूट, गुआवा, एप्पल, पपाया, दीज आर गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स आल्सो। लंच में ब्राउन राइस, अगेन ब्राउन ब्रेड आपने ब्रेकफास्ट में खाई, लंच में अब आप एक ब्राउन राइस खाए। ब्राउन राइस के साथ आप कोई भी चीज जो आपको खाना है, दाल सब्जी हो, सैलड हो, कर्ड हो, यू कैन ईट इट, बट ब्राउन राइस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी, मतलब व्हाइट राइस नहीं होना चाहिए। फिर इवनिंग में आपको लंच के बाद, और इवनिंग में अगर भूख लगेगी, आप यू कैन ईट रोस्टेड चना, यू कैन ईट बटर मिल्क या बॉइल्ड एग, 1 बॉइल्ड एग आप खा सकते हैं, या एनीथिंग दैट इज हैविंग कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। पर इन सब में आपको कहीं ना कहीं एक फाइबर ऐड करना ही करना है। जैसे हमने लंच में एक सैलड ऐड रखा है, एक फाइबर डाइट विद कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ब्राउन राइस प्लस सैलड, ठीक है, और प्रोटीन बैलेंस डाइट बनाने के लिए दाल सब्जी, दीज आर हैविंग प्रोटीन कंटेंट है। डिनर में यू कैन अगेन टेक ब्राउन राइस इफ यू वांट, और यू कैन टेक मल्टीग्रेन रोटी आल्सो, सब्जी आल्सो, सैलड आल्सो। सैलड आपको दिन में 2 बार खाना ही खाना है। इफ द पर्सन इज ऑन इंसुलिन, दैट इंसुलिन यूजुअली बिफोर मील लेते हैं, फिर बिफोर मील के बाद क्योंकि उनको खाना पड़ता है, क्योंकि उनको हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट हो जाता है, कैन ईट एनीथिंग दैट इज हैविंग काइंड ऑफ 1 बिस्किट और 1 ग्लास लो फैट मिल्क पूरी रात के लिए। तो उसका रात भर भी ब्लड शुगर लेवल कैन रिमेन इन मतलब नॉर्मल रेंज में, क्योंकि लो फैट मिल्क जो होगा, ये बहुत फैट में केसी, ये ना मिल्क में केसिन होता है, इट गेट्स टाइम टू गेट डाइजेस्टेड, इसमें बहुत टाइम लगता है। सो रात भर उनको अच्छी खासी एक एपेटाइट भी लगेगा कि मैंने कुछ खाया। अगर वो दूध पियेंगे और एक बिस्किट भी खाएंगे, इट विल बी काइंड ऑफ, उनको रात को लगेगा कि हाँ आई हैव ईटन समथिंग, इट विल बी काइंड ऑफ गुड फॉर पर्सन, उसको अगर रात में भूख लगती है, ठीक है। सो दिस डाइट इज अ सैम्पल डाइट। ये डाइट अगर आप लोग एटलीस्ट फॉर 1 मंथ फॉलो करवाएंगे, किसी को भी, इवन योर फैमिली, यू कैन सी द डायबिटीज का कंट्रोल योर सेल्फ। क्योंकि ये डाइट जो है, ये जो नॉर्मल डाइट है लोगों की, उससे काफी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सुबह मॉर्निंग में आपका पहले एक ऐसा स्टार्टअप हो रहा है जिसमें मेटाबॉलिज्म जो भी आप खा रहे हैं विल बी बैलेंस इन योर बॉडी। ल्यूकवार्म वाटर विद लेमन, फिर बॉइल्ड एग्स, ब्राउन ब्रेड या विदाउट। What about meat and poultry? Why can't they eat diabetic patients? Why can't they eat meat and poultry? सर एनीथिंग आप हाई पोल्ट्री खा रहे हैं जिसमें हाई प्रोटीन है also, क्योंकि प्रोटीन आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी है ही नहीं। यू शुड टेक कम्प्लेक्स कार्ब्स फॉर एनर्जी, यू कैन ईट दैट आल्सो लिमिटेड रेंज में। इफ यू But ईट boiled eggs पोल्ट्री, also is the reference protein. Eggs are contain the reference protein. They are the best in protein. We alternate them with the mutton, chicken, or something. What's the problem? तो They are मटन protein. हैविंग, They are मटन not इज, the carbohydrates. मटन में फैट भी है। यू आर हैविंग फैट, यू विल ईट मोर फैट, आपकी बॉडी फैट पे ही रिलाई कर रही है ना, ऑब्वियसली Okay. इट्स ब्रेकिंग डाउन फैट। But what about poultry? पोल्ट्री यू कैन ईट, एंड चिकन आप कर सकते हैं, बट आपको बैलेंस प्रोटीन लेना है। एग्स के बदले आप चिकन भी ले, पर एग आपने खुद भी बोला इट्स अ रेफरेंस मील जो हम देते हैं, तो ये डाइट भी जो है ये एज अ रेफरेंस ही बनाई गई है। कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल चॉइसेस। ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्टली आई एम टेलिंग कि यही खाइए यही खाइए। इवन इफ यू वांट टू सब्स्टिट्यूट एनीथिंग दैट इज हैविंग प्रोटीन, फॉर एग्जांपल दाल, What about fish? सर बेस्ट सोर्स फॉर प्रोटीन फिश, ओमेगा 3 फैटी एसिड, बेस्ट सोर्स फॉर कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट इज फिश, यू कैन ईट, दिस इज जस्ट अ Should sample. avoid diabetes or you can eat? So you can eat omega 3 is best for diabetic patients because Yeah, it's the they are best prone one. to cardiovascular problems. So this is a sample diet, can be modified according to the person's need, but this is something you can, at least anyone can try.
फिर जिसको लगता है they can modify, जिसका टेस्ट कुछ डिफरेंस होगा, they can modify it. But this sample diet, you guys should take a screenshot of it and try to convince your parents or anyone in the family who's having diabetes to try to follow this for at least 1 month. Then you can see the difference in their blood sugar levels. आप देखेंगे उनका डायबिटीज का कंट्रोल. प्लस सिर्फ डाइट ही नहीं, इट्स नॉट लाइक डाइट आप खा भी रहे बट यू आर सिटिंग डजंट मीन यू आर कंट्रोलिंग योर डायबिटीज. एटलीस्ट वर्कआउट फॉर एटलीस्ट 30-45 minutes, whether be aerobic exercise like yoga, can do a हफ्ते में 3 बारी. You can use this energy, anything you are eating should go into the muscle. Your muscle should, they should think कि हमें भी काम कराया जा रहा है. Your muscle should not be like sitting and resting. Muscles का भी काम होना चाहिए. The muscle should be work, are made for work. Muscles का काम ही है काम करना. But many people are not just using their muscles at all. So at least go gym for 3 days in a week. 3 days जो भी आप खा रहे हैं, it will get utilized by your muscles. So आपकी blood sugar level will be remain normal. So can do aerobic exercise, yoga. जिम में आप एज अ कार्डियो के लिए, आप अगर कार्डियो बेनिफिट चाहते हैं, तो कार्डियो का मतलब ही होता है कार्डियो. और अगर आप वेट लिफ्टिंग भी करेंगे, दैट इज ऑल्सो गुड. स्टार्ट विद लो वेट लिफ्टिंग, लाइट वेट उठाइए, कोई भी एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, रनिंग करिए, कोई भी जिसमें आपकी मसल यूटिलाइज हो रही है. यू शुड डू एटलीस्ट फॉर 30 to 40 minutes इन अ डे. एटलीस्ट आप 24 आवर्स में 30-40 मिनट अपने लिए अगर आप निकालेंगे या अपनी फैमिली को आप समझाएंगे कि ये चीज करिए, देयर ब्लड ग्लूकोज लेवल विल बी इन अ नॉर्मल रेंज एंड इन कॉम्प्लिकेशन जो हमने पढ़ी, इनसे कम से कम वो बच जाएंगे. सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम प्रिवेंट कर सकते हैं. प्रिवेंशन इज ऑल्सो बेटर देन क्योर. सो प्रिवेंट करिए कॉम्प्लिकेशंस. व्हाई टू मेक कॉम्प्लिकेशंस तक पहुंचाना, फिर देन दे आर कमिंग, देन दे आर गेटिंग ट्रीटेड एट लास्ट. सो बेटर इज टू फॉलो दिस डाइट प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. हाँ, अब कोई लोग जो ये चीजें फॉलो नहीं करते, अब अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, ही वोंट स्टार्ट यू विद द ड्रग इनिशियली. ही विल फर्स्ट टेल यू आप प्लीज पहले वेट थोड़ा कम करिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप डाइट खाइए, फिर अगर कंट्रोल नहीं हुआ विल स्टार्ट यू ऑन द अनदर ड्रग. बट अब आज क्या हो रहा है, आज लोग इतने दे आर लेजी हो गए कि दे डोंट नीड टू वर्कआउट, दे डोंट वांट टू चेंज देयर डाइट ओनली. सो दे आर काइंड ऑफ इसी में ओके एंड दे टेल द डॉक्टर सर प्लीज दवाई दे दीजिए, हमें डायबिटिक की दवाई स्टार्ट कर दीजिए. सो मेनी डॉक्टर्स आर स्टार्टिंग द पेशेंट्स ऑन एंटी डायबिटिक ड्रग्स विदाउट इवन दीज पेशेंट्स आर चेंजिंग देयर डाइट एंड लाइफस्टाइल. सो बेस्ट इज टू चेंज योर डाइट एंड लाइफस्टाइल. इससे आपका कंट्रोल में रहेगा, आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाएगी. सो योर डायबिटीज विल बी अंडर कंट्रोल. देन you'll see how energetic you will feel within 1 month में आपकी बॉडी चेंज दिखा देगी आपको. So if you eat right, move more and sleep well, you can delay or prevent diabetes. Just losing 5 to 6 kg can reduce your risk by over 50%. Means half कर देगा पूरा रिस्क आपका डायबिटीज का. Just 5 to 6 kg आपको लूज करना होता है वेट. एंड दैट इज हेल्थी लूजिंग वेट. यानी कि आप स्टारवेशन पे चले गए, स्टारवेशन में भी एट लास्ट कीटोन्स ही बनने हैं. सो उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस है. हेल्दी वे में आपको यही डाइट फॉलो करके, यही वेट ऐसे ही मैनेज करके, इफ यू लूज 5 to 6 kg, यू कैन रिड्यूस योर डायबिटीज रिस्क का जो भी रिस्क है बाय 50%. और प्री डायबिटिक पेशेंट जो प्री डायबिटिक है, उनमें भी अगर हम ये डाइट की लाइफस्टाइल चेंजेस अभी से ही अपने यंगर जो हमारे जनरेशन है उनको समझाएंगे, या ओल्डर जनरेशन को जिनको काइंड ऑफ एजुकेशन दे आर लैकिंग, सो वी कैन इवेंचुअली हेल्प देम टू कंट्रोल डायबिटीज और इवन प्रिवेंट डायबिटीज इफ इट हैज नॉट अकर्ड. क्योंकि लाइफस्टाइल इज द बेस्ट थिंग वी कैन टेल देम और एडवाइज देम. फिर बाद में ड्रग्स तो आती है. So we are having anti-diabetic drugs, and we can start discussion on anti-diabetic drugs. I like to tell you something like risk जो diabetic drugs के, not benefits. I'll tell you about the side effects जो आपको aware होना है. If in your family someone is taking these drugs, you kind of should be aware कि इस drug के क्या side effects होते हैं. So how many of you in your family या किसी के family members में diabetes है? Yes, Dr. Khalid has said, and Fatima, my father. Okay. Yes, my mother. I also asked a question in the chat box. Okay, can excessive sweating be also one of the symptoms of high blood sugar? As recently, I have been observing excessive sweating in my mother as well as high pulse rate. And after testing, the result was 250 mg deciliter. What measures can sometimes someone take in such situation? Excessive sweating is one of the symptoms of hypoglycemia, but excessive sweating is not a symptom of hyperglycemia. Hyperglycemia will never, आप कहीं पे भी नहीं पढ़ोगे there's excessive sweating in someone. Can be some other causes. Even if you have excessive sweating, you should test for thyrotoxic causes, hyperthyroidism. Excessive sweating is seen in hyperthyroidism also. So you should test for thyroid if you feel it's like abnormal, not normal sweating. So it's not hyperglycemia, it can be hypoglycemia. Fasting or random, it's kind of. It was random. She is diabetic. Okay, it's of your mother only, 250 Yes, mg. Okay. So she's diabetic. Can be sweating because can metabolism जिस चीज में जैसा hyperthyroidism में your metabolism getting increased. So hyperthyroidic patient में आप weight loss ही देखते हो कि metabolism बहुत ज्यादा तेज हो गया होता है as compared to hypothyroidism. उसमें सब slow हो जाता है, उनमें weight gain देखा जाता है. So can be hyperthyroidism case ऐसी same kind of you can relate with the diet if it's not getting controlled. उनकी body metabolism कर रही होगी, fat breakdown कर रही होगी. Can be sweating जो उनके लिए शायद उनकी age के हिसाब से can be more. So these are some things about sweating. I hope you will kind of do check up for your mother for thyroid also. Sure. Okay. Thank you so much. Okay, no problem. So let's start with anti-diabetic drugs. The best drug and the most used drug anyone is using, any one of you can see आपके घर पे कोई भी diabetic patient होगा, they will be metformin. Metformin is मतलब anti-diabetic drug में class आता है that is known as bicarbonate. So what does
metformin का mechanism that will not go in detail क्योंकि it will be kind of सर के ऊपर for you all. So side effects I'll tell you about metformin. What are the side effects that you should be aware about if a person is taking metformin? For example, my mother is diabetic. She's taking metformin for a long time. Now recently she was complaining of having a weakness in the body. And in starting, I told you about weakness. So weakness में I told you some vitamins की deficiency are happening. Anyone who is taking metformin, उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है. सो कोई भी मेटफॉर्मिन ले रहा है, अगर वो कंप्लेंट करे ना, आई एम हैविंग वीकनेस, मेरे को टिंगलिंग हो रहा है नर्व्स में, कैन बी डायबिटिक न्यूरोपैथी, कैन बी विटामिन B12 डेफिशिएंसी. सो एनीवन हु इज टेकिंग मेटफॉर्मिन शुड ऑलवेज सप्लीमेंट विटामिन B12 विद इट. सो पहला थिंग जो आज के आई थिंक मोस्ट पीपल नहीं ले रहे मेटफॉर्मिन के साथ विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट. अनदर थिंग इज मेटफॉर्मिन जो है इट कॉजेस है ना बाइल सॉल्ट जो एब्जॉर्प्शन फैट एमल्सिफिकेशन एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, ये उसमें भी हैम्पर करता है. सो यूजुअली डायबिटिक पेशेंट जो मेटफॉर्मिन हाई डोजेस में लेते हैं ना, उनको बाइल एसिड डहेरिया हो जाता है. दे आर हैविंग डहेरिया, वो बाइल सॉल्ट डहेरिया उसको हम बोलते हैं. सो दीज आर सम कॉमन सिम्टम्स, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स दैट वी कैन सी इन समवन हु इज टेकिंग मेटफॉर्मिन. बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड ऑफ मेटफॉर्मिन, एनीवन हु इज टेकिंग मेटफॉर्मिन इज किसी का भी किडनी में कोई प्रॉब्लम है और हैविंग एनी हार्ट डिजीज और हैविंग एनी लिवर डिजीज फ्रॉम लॉन्ग टाइम शुड नॉट टेक मेटफॉर्मिन एट ऑल. हार्ट, kidney and liver disease wale patients should never take metformin. First contraindication. Second contraindication is if someone is having for example someone is having infection in the body. इन्फेक्शन का मार्कर हम लैक्टेट देखते हैं बॉडी में. सो मेटफॉर्मिन लैक्टिक एसिडोसिस कराती है. तो कोई भी पेशेंट हुज हैविंग इन्फेक्शन या रीसेंट मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या रीसेंट हार्ट अटैक हो गया, कोई भी कंडीशन जहाँ पे बॉडी हाइपोक्सिया की स्टेट में चली गई है. हाइपोक्सिया मतलब आपके टिश्यूज में कम ऑक्सीजन है या ब्लड में कम ऑक्सीजन है, सो हाइपोक्सिया हम बोलते हैं. उसमें लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है और मेटफॉर्मिन ऑलरेडी लैक्टिक एसिड ज्यादा बढ़ाती है. सो इट विल काइंड ऑफ कॉज बर्डन ऑन योर किडनीज टू एक्सक्रीट, क्योंकि किडनी से कंपनसेट करती है बाय बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन पहले ही, ठीक है. फिर बाद में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपनसेट करता है बाय हाइपर वेंटिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से बाहर ज्यादा फेंकता है, ठीक है. सो ज्यादा लैक्टिक एसिड बिल्डअप भी नहीं होना चाहिए बॉडी में. सो किडनी एक्सक्रीट करती है ना, तो किडनी ठीक होनी चाहिए. इन ड्रग्स को अगर आप ले भी रहे हो तो आपकी किडनी शुड बी फंक्शनल. उनमें GFR हम कैलकुलेट करते हैं सो दैट यू कैन, जब आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, उसमें GFR भी होता है. सो eGFR अगर लेस देन 30 होगा तो तब हम मेटफॉर्मिन स्टार्ट नहीं करते. या कोई भी लिवर डिजीज होगी, हार्ट डिजीज होगी, सो कोई भी रिसेंट MI का पेशेंट होगा या इन्फेक्शन जिसमें होंगे या किसी में भी कोई कॉन्ट्रास्ट वाली इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें मेटफॉर्मिन नहीं लेना होता. और साइड इफेक्ट आई टोल्ड यू, विटामिन B12 डेफिशिएंसी मस्ट कीप इन योर माइंड एनीवन हु इज टेकिंग मेटफॉर्मिन. अनदर ड्रग दैट इज सल्फोनाइलयूरिया, दैट जो हम फिर सेकंड लाइन ऐसा यूज करते हैं, दैट इज ग्लाइमेप्राइड, ग्लाइपेसाइड. ये भी कुछ ड्रग्स है, यू कैन चेक अगर आपकी फैमिली में कोई ले रहा है. सो इसमें वन ऑफ द साइड इफेक्ट आई टोल्ड यू अर्लियर विद डिस्कसिंग विद डॉक्टर खालिद सर कि एनीवन हु इज टेकिंग सल्फोनाइलयूरिया, अगर उसमें G6PD डेफिशिएंसी होगी दैट विल बी प्रोन टू हेमोलाइटिक एनीमिया. और सल्फोनाइलयूरिया जो है मोस्टली, मेटफॉर्मिन तो वेट लॉस कराती है बट सल्फोनाइलयूरिया वेट गेन कराती है. और मेटफॉर्मिन इज नॉट लाइक कि आपका ब्लड शुगर लेवल अगर हाई है तो उसको एक्सट्रीम लो करेगी, नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया. मेटफॉर्मिन डजंट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, इट कॉजेस यूग्लाइसीमिया, मतलब ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रेंज में रखती है. मगर सल्फोनाइलयूरिया इज अ हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग. तो सल्फोनाइलयूरिया जो है वो आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से भी कम करती है, तो दैट इज कॉजिंग हाइपोग्लाइसीमिया. सल्फोनाइलयूरिया का अब्यूज होता है, इंसुलिन का अब्यूज करते हैं इन दो ड्रग्स को हाइपोग्लाइसीमिया के लिए. सो इनमें फिर हमें डायग्नोस करते टाइम जब हम हाइपोग्लाइसीमिया पढ़ते हैं ना, वी हैव टू डिफरेंशिएट कि इसका हाइपोग्लाइसीमिया मतलब किसी बीमारी की वजह से हुआ है या इसका हाइपोग्लाइसीमिया सल्फोनाइलयूरिया की वजह से हुआ है, इंसुलिन की वजह से हुआ है या किसी ट्यूमर की वजह से हुआ है. उसमें हम विपल्स ट्रायल पढ़ते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में, वो भी काइंड ऑफ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो, बट दीज थिंग्स शुड बी कीप इन माइंड कि सल्फोनाइलयूरिया जैसे ग्लाइपेसाइड, ग्लाइमेप्राइड वगैरह ड्रग्स जो है, दीज आर कॉजिंग हाइपोग्लाइसीमिया. सो किसी को भी हाइपोग्लाइसीमिया होगा, जो सिम्टम्स आई टोल्ड यू लाइक ट्रेमर्स, हार्ट रेट ज्यादा, स्वेटिंग, वो सब, सो उनमें जल्दी से जल्दी कुछ शुगर आप उनको जल्दी से जल्दी दीजिए, हनी दीजिए, जैम दीजिए, कुछ जल्दी से एब्रप्टली दीजिए, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया में इफ यू हैव टू ट्रीट समथिंग दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया में मोर्टेलिटी बहुत है, हाइपरग्लाइसीमिया में मोर्टेलिटी उतनी नहीं है, एंड इट इज अ क्रोनिक कंडीशन. हाइपोग्लाइसीमिया एक्यूट है. इफ समवन इज हैविंग लो ब्लड शुगर ही कैन डाई. सो उस वक्त कुछ शुगर ही देना पड़ता है, देन यू कैन टेक हिम और हर टू द हॉस्पिटल, वहां पे उनको डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन पे चढ़ाते हैं. तो बट एज एन इमरजेंसी केस यू शुड नो बी अवेयर अबाउट हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स क्या है, हाउ कैन वी मैनेज इट एट होम, कि अगर किसी को हो जाए, या कभी कभी किसी को स्कूल में भी हो जाता है, इवन कॉलेजेस में भी दे आर हैविंग हाइपोग्लाइसीमिया, दे हैवंट ईट एनीथिंग फ्रॉम द मॉर्निंग, लंबे लंबे लेक्चर क्लासेस होते हैं, दे आर गेटिंग हाइपोग्लाइसीमिया, दे सडनली दे कोलैप्स. सो उस वक्त भी आपको जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए कि एनीथिंग दैट इज हैविंग शुगर आप उनके मुंह में डाल दीजिए. कैंडीज भी चलेगी, कोई टॉफी भी चलती है, ठीक है. सो सल्फोनाइलयूरिया का वन ऑफ द साइड इफेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया, वेट गेन है साइड इफेक्ट. सो कुछ पेशेंट की कंप्लेंट्स रहती है इस ड्रग से कि वेट गेन हो रहा है, सो वी कांट टेक दिस ड्रग. Another thing, G6PD deficiency, it causes bone marrow failure also long term में. It can cause SIAD, that is known as syndrome of inappropriate area excretion, जहाँ पे let's not go into the detail of that, but hypoglycemia is one of the main side effect of sulfonylureas. Then come another drug that is like thiazolidinodines, that are rosiglitazone, pioglitazone. Many person are taking these drugs, but in UK it has been banned because rosiglitazone
ब्लैडर कैंसर कराती है, दे कॉज हार्ट फेलियर, दे एग्रेवेट हार्ट फेलियर and they cause bladder cancer. So anyone who's taking rosiglitazone or pioglitazone should be checked for symptoms of bladder cancer, like उनके यूरिन में खून तो पास नहीं हो रहा है, हेमोचूरिया तो नहीं हो रहा है, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स जैसे ब्रेथलेसनेस, हैविंग समटाइम्स एडिमा डेवलप, एडिमा हो जाता है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है. सो these symptoms, thiazolidinone, that are rosiglitazone and pioglitazone drugs, these can cause heart failure and they can cause bladder cancer. अब कुछ नई ड्रग्स आई है, they are having SGLT inhibitors. SGLT जो है, we're having two transporters in our body, SGLT1 and SGLT2. SGLT2 inhibitors, that is in the kidney, that doesn't let कि आपका ग्लूकोज जो है वो जब एक्सक्रीट हो रहा होगा ना, किडनी कुछ चीजें वापस से रीअब्सॉर्ब करती है उसके प्रोसेस में एक्सक्रीशन के. सो ये वापस रीअब्सॉर्ब करता है SGLT2. सो ये अगर हम इसका इनहिबिटर देंगे, इसको सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर बोलते हैं. सो अगर हम इसको इनहिबिट करेंगे, सो किडनी से ये ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब नहीं होगा जो भी पास आउट होना है. सो इट कैन लेड टू दिस ग्लूकोज की ये जाए वापस. सो SGLT2 इनहिबिटर्स आते हैं, एम्पाग्लियोफ्लोजिन, डायपाग्लियोफ्लोजिन ड्रग्स का नाम है. सो इनका साइड इफेक्ट होता है कि अगर आप एक्सेसिव ग्लूकोज यूरिन से पास कराते रहेंगे कंटिन्यू जो भी ग्लूकोज ब्लड में है, इट कैन कॉज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, क्योंकि गुड सोर्स है यूरिन में आपका, शुगर ही शुगर है. सो गुड सोर्स फॉर बैक्टीरिया टू गेट कोलोनाइज देयर. सो यूटीआई इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग. सो मेनली हमें हाइपोग्लाइसीमिया पे ध्यान रखना है, जो सल्फोनाइल यूरियाजीन में से कर रही थी. हाइपोग्लाइसीमिया इमरजेंसी कंडीशन है, वो सल्फोनाइल यूरिया करती है. मेटफॉर्मिन में हमें दिमाग में रखना है, विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन देनी है. वो रोजीग्लाइटोजन, पायोग्लाइटोजन ऑफ हार्ट फेलियर एंड ब्लैडर कैंसर. फिर SGLT2 इनहिबिटर्स, ये यूरिन में जो शुगर पास होता था उसको इनहिबिट करती है रीअब्सॉर्ब होने से, ताकि वो सारा पास हो जाए. सो इसकी वजह से यूटीआई हो सकता है. Another drugs that for diabetes that are approved are subcutaneous injections. वो हम एंड स्टेज पे लेते हैं जब इंसुलिन ही सिर्फ ऑप्शन है, जिसको ओजेम्पिक भी बोलते हैं. सम सेलिब्रिटीज आर अब्यूजिंग इट फॉर वेट लॉस ऑल्सो. ओजेम्पिक बोला जाता है इसको. सो सम सेलिब्रिटीज आर अब्यूजिंग इट फॉर वेट लॉस ऑल्सो, बिकॉज इट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर वेट लॉस, बट विदाउट कंसल्टिंग विद डॉक्टर्स ऑल्सो सम पीपल आर अब्यूजिंग इट, क्योंकि वेट लॉस कराती है. दैट इज GLP-1. सो उसमें एक्सेनाट्राइड, लीराग्लूटाइड एक इंजेक्शन आते हैं, सो वो हफ्ते में लेने पड़ते हैं. उनसे आपका वेट लॉस भी होता है. कोई भी डायबिटिक पेशेंट जिसका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है और उसका BMI बहुत ज्यादा है, और हमें पता है कि उसका मेन कॉज इस डायबिटीज का सिर्फ वेट गेन है, यानी ओबीस है, उसमें हम वो इंजेक्शन एडवाइस करते हैं कि आप वो इंजेक्शन स्टार्ट करिए. सम ऑफ दीज ड्रग्स. देन कम्स इंसुलिन. इंसुलिन का भी मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया. सो उसमें भी जब भी कोई पेशेंट इंसुलिन ले रहा है सबक्यूटेनियसली, वी शुड एजुकेट देम कि आप अगर इंसुलिन ले रहे हैं, सो यू शुड काइंड ऑफ ईट समथिंग आफ्टर इंसुलिन, ठीक है, ताकि आपका पूरा हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो जाए. सो टेक इट बिटवीन मील्स, क्योंकि अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, सो इट कैन लेड टू सम डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर. सो इंसुलिन में हमें हमेशा एडवाइस रहता है कि हमेशा अगर आप इंसुलिन ले रहे हो तो टेक इट बिटवीन मील्स. सो आज जो इंसुलिन प्रिस्क्राइब होता है वो होता है शॉर्ट एक्टिंग और एक होता है लॉन्ग एक्टिंग. शॉर्ट एक्टिंग शुड बी एज अ बेसल एंड बोलस इंसुलिन हम देते हैं. बेसल हो गया आफ्टर मील शुड बी टेकन, बोलस हो गया रात में, इट विल वर्क क्योंकि वो लॉन्ग एक्टिंग होता है. सो दीज आर सम एंटी डायबिटिक ड्रग्स, इनके साइड इफेक्ट्स आई टोल्ड यू. सो एज अ नॉर्मल पर्सन भी अगर आप ये चीज दिमाग में रखेंगे, इस ड्रग से ये साइड इफेक्ट होते हैं, सो यू कैन काइंड ऑफ रिड्यूस द risk of letting it go further on. So these things I think might help you in your normal daily life, in your family also. So there are some drug of choice in multiple diabetic conditions. When there is diabetic neuropathy, when there is diabetic nephropathy, or agar diabetes patient is having hypertension, so what will be the drug of choice? In diabetic patient who's having hypertension, should be ACE inhibitors, should be taking ACE inhibitors or ARBs. ACE inhibitors are another drugs, enalapril, lisinopril, or ARBs you can take losartan, valsartan. I was not diabetic recently. It was diagnosed. Yeah, you were diagnosed recently. It's hypertensive amlodipine since long, 7-8 years. Yeah. So let's see. I'll Okay. start with metformin only. Yeah. So you have to take vitamin B12 with it now. Yeah, inshallah, I will take things. I think my webinar helped you in something. Yeah, You are senior doctors, so we are just junior in front of you. That's no problem. That's Yeah. very nice. Nice of Thank you. So there are many drugs of choices in many diabetic conditions like diabetic neuropathy. We can give another drug. किसी भी diabetic patient is having pain in the feet. Yeah, diabetic foot में antibiotics देनी होती है. So it's kind of medically related, but let it be. So hypoglycemia, I told you, is an emergency if someone is taking sulfonylureas, क्योंकि sulfonylurea से hypoglycemia होता ही होता है. For someone who's not taking either drugs, he's only relying on insulin. So insulin में भी hypoglycemia होता है. So hypoglycemia के और सारे differential diagnosis. Normal life में भी hypoglycemia is kind of बहुत important है to know hypoglycemia, क्योंकि suddenly कोई भी patient collapse हो रहा है, is having sweating, tremors, palpitations, and we don't know कि hypoglycemia का main cause क्या है, except for he has not eaten something. So there are some causes, like someone who has chronic liver disease or someone who's taking alcohol for a long time are prone to hypoglycemia. Someone who's taking antidiabetic like sulfonylureas, they are prone to hypoglycemia. Someone who's taking insulin, hypoglycemia. Someone who's having a tumor, insulinoma. Have you ever heard about insulinoma? It's a tumor जहाँ पे इंसुलिन बहुत ज्यादा सिंथेसाइज हो रहा होता है. किसी भी ट्यूमर में किसी भी साइड में उस चीज का जो हार्मोन है वो इंक्रीज ही होता है. सो इंसुलिनोमा में इंसुलिन ही इंक्रीज हो रहा है, सो उसकी वजह से रिकरेंट हाइपोग्लाइसेमिक अटैक्स हो रहे हैं. सो वी कैन डायग्नोस इट, क्योंकि जब someone who's coming to us with recurrent hypoglycemia, we have to check two things, ठीक है. फर्स्ट वी कैन सी इंसुलिन का एक
जब इंसुलिन बन रहा होता है ना, सो इट गोज आउट थ्रू वेरियस स्टेजेस। सबसे पहले इंसुलिन का प्रो इंसुलिन होता है, फिर प्रो इंसुलिन होता है, फिर इंसुलिन बन जाता है, और इंसुलिन जब बनता है उसके साथ सी पेप्टाइड भी बनता है। सो अगर ट्यूमर है, इंसुलिनोमा है, तो इंसुलिन तो बन रहा है बॉडी में, और साथ साथ जो इंसुलिन का प्रीकर्सर है, प्रो इंसुलिन, वो भी बन रहा होगा, सी पेप्टाइड भी बन रहा होगा। तो हम ये 3 टेस्ट करते हैं, तो इससे हमें पता चलता है द पर्सन इज हैविंग इंसुलिनोमा। व्हाइल एज अगर समवन इज टेकिंग सल्फोनाइलयूरियाज, सल्फोनाइलयूरियाज भी इंसुलिन सिक्रेटोगोक्यूल्स है, वो इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ाती है पेनक्रियास से। सो उसमें भी आपका इंसुलिन बढ़ेगा, सी पेप्टाइड बढ़ेगा, बट प्रो इंसुलिन उसमें नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो आपका सिंथेसाइज नहीं कर रही है, वो सिर्फ स्क्रीट कर रही है। सो सल्फोनाइलयूरिया अगर आप कोई अब्यूज कर रहा है, उसको आपको पता चल जाएगा कि अगर आप सल्फोनाइलयूरिया का आप इंसुलिन देखोगे और सी पेप्टाइड देखोगे, ये दोनों रेज्ड है, और आप एक यूरिन टेस्ट करोगे सल्फोनाइलयूरिया ड्रग का टेस्ट करने के लिए, उसमें पता चल जाता है कि समवन हैज टेकन सल्फोनाइलयूरिया, इसकी वजह से इसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। इंसुलिनोमा में प्रो इंसुलिन भी बन रहा होगा, क्योंकि ये पहले से ट्यूमर सारा कुछ बना रहा है। और but these things are something that I want to tell you about hypoglycemia. And any one of you who knows World Diabetes Day कब होता है? So you guys should know about World Diabetic Day also. 14th November. Yes, it's on 14 November. So World Diabetic Day आपको दिमाग में रखना चाहिए 14 नवंबर। So डायबिटीज ही एक ऐसी कंडीशन है जो इंडिया में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कॉज करी है, सबसे ज्यादा कॉज ऑफ डेथ्स आर ड्यू टू डायबिटीज। डेथ सर्टिफिकेट पे मेंशन नहीं है, बट जो भी हमने पढ़ा कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, स्ट्रोक हो, एनी कॉम्प्लिकेशन तो मेजर ऑर्गन्स के हो रहे हैं, वो डायबिटीज से ही हो रहे हैं। डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस आई टोल्ड यू, कैसे हम सिम्टम साइंस डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे वी कैन डिफरेंशिएट टाइप 1 टाइप 2, और भी डायबिटीज के बारे में आई टोल्ड यू, गेस्टेशनल कैसे, सीजर में क्या होता है, ऑटोइम्यून कैसे, ऑटोइम्यूनिटी कैसे टाइप 1 डायबिटीज कॉज करती है, डाइट क्या है, हाउ कैन वी मैनेज, सो ड्रग्स के साइड इफेक्ट क्या है। सो आई होप इट वाज काइंड ऑफ एवरीथिंग आई ट्राई टू tell you everything about diabetes in just a one webinar, and that I conducted for free. I didn't charge a single penny for this webinar because I wanted to make even one person aware, क्योंकि वो एक person will tell someone that diabetes ऐसे होता है। डायबिटीज का मतलब नहीं होता सिर्फ शुगर लेवल ही ब्लड में ज्यादा होता है, इससे देखो यूरिन में भी ये सारा शुगर पास हो जाएगा। सो कैन लेड टू पॉलीयूरिया, ज्यादा यूरिनेशन, कैन लेड टू थर्स्ट, ये सिम्टम्स conceptually you know. So this was my kind of effort for doing this webinar. So I think आप में से किसी को कुछ कंट्रीब्यूट इसमें अच्छा हुआ हो, कि आपकी नॉलेज कुछ गेन हुई हो, इवन आई ट्राई टू लर्न समथिंग, आप लोग भी कुछ लर्न कर रहे होंगे। सो कैन यू गाइस गिव मी अ फीडबैक कि आपको ये सेशन कैसा लगा? वाज इट काइंड ऑफ हेल्पफुल फॉर यू, और इट वाज लाइक जस्ट सर के ऊपर से गया सब? Definitely, it was helpful for most of us, I hope, and we gained a lot of knowledge. I also personally gained many things I didn't know. Actually, I might have read about them, but I forgot because this is not my field now. Yes sir, yes sir. Away from this field now. So for me, it was a refresher course, like, and Yes, sir. and new things also I did, which were like drugs where I did, and other things, complications, some things, and yeah, it was very nice. Alhamdulillah, keep it up. It is very nice, and next time I hope there is another topic, and we will enjoy like we Yes sir, enjoyed thank today. you sir. And there will be more participants. I will also tell my circle about this, and then definitely they will also join, inshallah. Thank you sir, thank you a lot. Thanks a lot. Thanks. First of all, thank you so much for like organizing such a wonderful webinar. Thank you. And I have been recently attending webinars regarding diabetes and lifestyle diseases because my parents are into this. Thank you so much for the detailed webinar, because like most of the time we don't get much of the details, like inside details. So thank you so much, and I hope we'll be attending more webinars soon. Thank you so much. Thank you so much. Dr. Naveed, thank you so much. Thank you, ma'am. Just I want to personally thank you because you give me a nice diet chart for my husband, so I can apply on him. Because Thank you. he was not agree with me. So Alhamdulillah, now he is agree. So keep it up, and Allah bless you. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Now, after ending this webinar, you will get a diet chart that you can keep in your home. You can take the print of it. You can keep it in your home and help your family members. And you will get a certificate of participation. And if we'll organize next webinar, so you guys will get notifications, and there will be always, if this webinar was for free, next webinar I hope will also be for free. It will try to cover majority of the diseases that are very common in India and that many people in our house or home are suffering from it. So thank you all for joining. I hope it was a good session for all of you. So thanks all. So we are ending the session. Okay. Thank you. Thank you all of you. Thank you.